તો બધાને ખૂબ 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 આજે ભગવાનનું દીક્ષા કલ્યાણ, સેંકડો લોકો દીક્ષાના માર્ગે જવા માટે આજે ભગવાનની જેમણે અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરી છે, अलौकिक अद्भुत मंगलकारी आराधना सुमेरु नवकार तीर्थ के अंदर 2021 की साल हमारे लिए बहुत बहुत लकी रही है। અને જે મેન નાના લાભાર્થી એડમિન છે એ લોકોને અનમ્યુટ કરી દો ને। નામ કયો ને એકનું, અથવા તો હેન્ડ રેઝ। થાણા મંડળના જે પણ અધિકારી છે જેને પણ આજે સ્પીચ આપવાની છે। હા ઓકે મનાલીજી, ઓકે મનાલીજી અનમ્યુટ કર્યા મેં આપને। શક્ય હોય તો બધા આસન પાથરીને બેસી જજો। બરાબર, નવકાર મંત્રનો પાઠ હોય તો નવકાર મંત્રનો પાઠ અથવા પ્રતિમાજી એની સામે ખૂબ જબરજસ્ત કોટીની 9 દિવસની અમે લોકોએ જે આરાધના સાધના કરેલી છે અને ગુરુદેવની જે એક વાચનાઓ છે બધી જ વાચનાઓ તમારા માટે રેકોર્ડ કરીને રાખેલી છે। આગામી સમયની અંદર જલ્દીથી જલ્દી તમને જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક પેજ ઉપર જોવા મળશે। કાલે જબરજસ્ત કોટીની જીવદયા, મનાલીજીનો વિડીયો ઓફ છે। 2100 થી વધારે ગાયો ભેંસો અને કાલે જે ખરેખર જીવદયાનું કેટલી બધી આંધળી ગાયોને પણ ભોજન કરાવવાનું આપણને બધાને લાભ મળ્યો। આજના પૂજનનો આખો લાભ આપણા સેજલબેન અને મિનલબેને લીધો। ખૂબ અદ્ભુત મહાપૂજન થયું। બધા તપસ્વીઓને આપણે ખૂબ સુંદર આખા જૈન અનુષ્ઠાનના ગ્રુપ દ્વારા 350 રૂપિયાની પ્રભાવના આપણે કરી। જેટલા પણ નવકાર મંત્રના હીલરો હતા, આરાધકો હતા, એ બધાને તો આવો થાણા મંડળની જેટલી પણ માતાઓ છે, બહેનો છે, એમનું આપણે બધા સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ। અને સ્વાગત પ્રવચન સાથે સાથે આજની દિવ્ય સાધના કે રોમે રોમે શ્રી નવકાર મંગલકારી જય નવકાર, તો ખૂબ ભક્તિભાવ સાથે પેલા કોનું લેવાનું છે આપણે પ્રવચન? જ્યોતિબેન, હે જ્યોતિબેન શેઠ। હાજી જ્યોતિબેન આવો। હા બોલ, કરી દે મને। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। પૂજાબેન જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર જ્યોતિબેન। જ્યોતિ શેઠના જય જિનેન્દ્ર। જી સ્વાગતમ સ્વાગતમ, સ્વાગત ગુરુજી આપનું થાણા ઘોઘારી મહિલા મંડળમાં। આપને ખૂબ સાંભળ્યા છે લોકડાઉનમાં, આપે ઘણું જ્ઞાન પીરસ્યું છે। તેવી જ રીતે અમારી આ બધી જ બહેનોને ભક્તામાં હીલર બનાવવાના છે અને નવકાર ચાંદનીની શીતળતામાં આહ્લાદ અનુભવ કરાવજો નિકુંજ ગુરુજી। એના માટે હું 2 શબ્દ કહેવા માંગુ છું। નિકુંજ ગુરુજી નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપી રહ્યા છે। નિરાશાથી ઘેરાયેલા અને આશાના કિરણો બતાવી રહ્યા છે। નિજાનંદ અવસ્થાનું ધ્યાન કરાવે છે નિકુંજ ગુરુજી। કુંજર સમા શુરવીર ગુરુજી ભક્તામર હિલિંગના પ્રભાવથી બધાને ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ જરૂરથી કરાવશે નિકુંજ ગુરુજી। જગત કલ્યાણ માટે ગુરુએ બતાવેલ માર્ગ અપનાવી ઘણા લોકોને દેશ વિદેશ સુધી ભક્તામર હિલિંગ પહોંચાડી રહ્યા છે નિકુંજ ગુરુજી। ગુઢ રહસ્ય જૈન ધર્મના પૂજન વિધિ વિધાન સાથે સમજાવી રહ્યા છે। ગુરુ કેવા હોવાનું રહસ્ય બતાવે છે નિકુંજ ગુરુજી। રુજુ સ્વભાવ વાળા, સમજાવવાની છણાવટ એવી કે ઘડીક વાર બધું ભૂલી જઈએ અને એવી એનર્જી આવી જાય છે નિકુંજ ગુરુજી। જીન શાસનમાં આવા હીરલા અને વિરલા ગુરુ ભગવંતોએ આપણી માટે તૈયાર કર્યા છે નિકુંજ ગુરુજી। પૂજાબેનની તો મીઠી મધુરી વાણી સાંભળીને પાણી પાણી થઈ જવાય છે। આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ બોલાયું હોય તો મિચ્છામી ટુકડોમાં હવે આપનું જ્ઞાન પીરસો।
ખૂબ જબરજસ્ત જ્યોતિબેન, તમે તમારી ભાવનાને વ્યક્ત કરી છે. તમે મારા મમ્મી જેવા છો, બસ એવા આશીર્વાદ આપો કે તમે જેટલું બોલ્યા છો એ બધું જ સાર્થક થઈ જાય. થશે થશે ને થશે, ચોક્કસ થશે. આપણી ચલો, એટલી ખૂબ બધી ખૂબ 2 અનુભવ. મહિનાથી આપણી ભાવના હતી, 2 મહિનાની આપણી તૈયારીઓ છે. તો બસ આપણે પીરસો જ્ઞાન. અને બધા અમારા બહેનો એટલા બધા ઓલા છે કે તમે એને ખાસ ખાસ નવકારના જાપનું 1.25 લાખ નવકારના જાપનું આયોજન ખાસ ખાસ કરજો. અને બધા બહેનોને કહેજો ખાસ ખાસ પેન ને બુક લઈને બેસે અને બધું લખી લે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ ઘોઘારી મહિલા મંડળના તમામ વ્યક્તિઓને. આ ઝૂમની લિંક બધાને તમારા ગ્રુપોમાં જે છે વોટ્સએપમાં ફોરવર્ડ કરી દેજો. અને ફેસબુક ઉપર પણ આપણો કાર્યક્રમ ચાલુ થઈ ગયો છે. શૈલાબેન, આગળ બીજું કોણ છે? હવે તમે ચાલુ કરો, વચ્ચે હું બોલી થોડું. આપનું ચાલુ કરો, હાજી, ઓકે. પછી વચ્ચે હા, મીડિયમમાં મને ચલો. કહેજો. હે? સરસ. આ તમારો ખૂબ ખૂબ બરાબર આભાર છે. નિપુણભાઈ. તમે એટલા બીજી ટાઈમમાં પણ અમારી માટે એટલો સરસ સમય કાઢ્યો, 2 કલાકનો. આટલું ટાઈટ શિસ્તું હતું તો પણ તમે બહુ સરસ. તમારો પૂજાબેનનો મારા મંડળ વતી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. પછી હું વચ્ચે મીડિયમમાં લઈશ. ચલો, સાતામાં રહેજો. પ્રણામ જય જય. ચલો, બધા બંને હાથ જોડી નમસ્કાર મામ. અઠમના બધા તપસ્વી તપસ્વી એકદમ જાતકમાં છે. દેવ ગુરુ પસાય. તમારે 8મ જ છે ને શૈલાબેન? ના, મારે નથી હો. મારે નથી. સારું, કઈ વાંધો નહીં. ચલો, શૈલાબેન ને એક અનમ્યુટ રાખીએ. આપણે બધા આજના कार्यक्रमની आज के जो कार्यक्रम की रूपरेखा हम समझ लेते हैं. हमें 4 चरण में नमस्कार महामंत्र का जाप करना है और कुछ में आपको प्रैक्टिकल ગુજરાતી સરસ. 4 ચરણમાં બધા સાથે મળી અને જાપ કરીશું. અને આપણા જેટલા પણ વિશિષ્ટ કોટીના નમસ્કાર મહામંત્ર, કારણ કે 9 દિવસથી અખંડ ધારાએ સુમેરુ નવકાર મહાતીર્થમાં જાપ ધ્યાન આરાધના ચાલી રહી છે. અને એ જાપ ધ્યાન આરાધનાના પ્રભાવે આખા વિશ્વની અંદર પરમ મંગલ થાય, પરમ કલ્યાણ થાય એવા ભક્તિભાવ સાથે સૌથી પહેલા બધા 2 હાથ જોડી 3 નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ. અને આ નવકાર મહામંત્રના જાપ પણ આપણા ઘરે નહીં, પણ યુગાદિદેવ આદિનાથ ભગવાનની જય તલેટી ની અંદર આપણે બધા બેઠા છીએ શત્રુંજય મહાતીર્થની ભાવ યાત્રા કરતા કરતા. કારણ કે નમસ્કાર સમો મંત્ર શત્રુંજય સમો ગિરી, વિતરાગ સમો નહીં દેવો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. આંખો બંધ કરી ધીરે 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 2021 નું વર્ષનો શુભારંભ થઈ ગયો છે. ચારો તરફ આનંદ, મંગલ, ખુશાલી. ઓર ખુશાલીની અંદર એટલી બધી આનંદ પ્રગતિ બધાની વધી રહી છે. રસી પણ શોધાઈ ગઈ છે. આપણે તો ઓલરેડી સ્વસ્થ છીએ જ. ઓર સ્વસ્થતા ઈશ્વરની દિવ્ય કૃપાથી બધા સર્વ જીવોને પ્રાપ્ત થાય એવા ભક્તિભાવ સાથે બધાની આંખો બંધ અને 3 નમસ્કાર મહામંત્રની એવી જબરદસ્ત કોટીની આપણે સાધના કરીએ કે સાધના કરતા 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 ઉત્તમોત્તમ લાભ, ઉત્તમોત્તમ ચીજ, ઉત્તમોત્તમ સાધના આપણને બધાને પ્રાપ્ત થાય એવા ભાવ સાથે આંખો બંધ, શત્રુંજયનું ધ્યાન. અને શત્રુંજયનું ધ્યાન ધરતા ધરતા મહામંગલકારી આપણે સાધનાનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ. એક કવિએ સુંદર મજાના શબ્દની અંદર કીધું છે કે ઠંડા પહોરે ચાલી લો, ઠંડા પહોરે ચાલી લો, નહીતર બપોરે હેરાન થશો. સભી લોગ નોટ કે બધા લોકો નોટની અંદર લખતા રહેજો. ઠંડા પહોરે ચાલી લો, નહીતર બપોરે હેરાન થશો. ઠંડા પહોરમાં જે માણસ જેટલું ચાલી લે છે તો ગરમીનો સહન કરવી બપોરે પડતી. ઠંડો પહોર એટલે શું કે આજનો દિવસ. યોગાનું એક ઘોઘારી જે પૂરું મંડળ છે એને આજે દિવસનું જે નિર્માણ કર્યું છે ભગવાનનું દીક્ષા કલ્યાણ. बनारस नगरी, काशी देश, अस्पष्ट राजा बामा देवी, पूरा अलौकिक वातावरण के अंदर भगवान की दीक्षा का महामंगलकारी महोत्सव, वैराग्य की भावना. और वही वैराग्य की भावना ये कविता एक आ कविता તમને બતાવે છે કે આજે ધર્મ કરી લો. આજે તમારા હાથ સારા છે, પગ સારા છે, કાન સારા છે, ધર્મને સમજી શકો છો, ધર્મ માટે બેસી શકો છો. यदि જે વખતે આ બધી જ વસ્તુ પ્રતિકૂળ બનશે અને પછી ગમે એટલી તમને ધર્મ કરવાની ઈચ્છા થશે, તમે ધર્મ કરી શકશો
ફરીથી તમે ધર્મ કરી શકશો નહીં. તો કે ઠંડા પહોરે ચાલી લો, બપોરે હેરાન થશો. ખાસ 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 નમસ્કાર મહામંત્રની આરાધના માટે ગુરુદેવ બતા રહે છે કે બીજા જેટલા પણ મંત્રો છે, દુનિયાના તમામ મંત્રો પરતંત્ર છે, પણ નમસ્કાર મહામંત્ર સ્વતંત્ર છે. ધ્યાનથી લખી નાખો, જેટલા પણ દુનિયાના મંત્રો છે એ બધા પરતંત્ર છે. માણીભદ્રજીનો હોય, ઘંટાકણ મહાવીરનો હોય, પદ્માવતી માતાનો હોય, જેટલા પણ છે, પણ નમસ્કાર મહામંત્ર એ મહામંગલકારી મંત્રાધિરાજ શાશ્વત મંત્ર છે. બીજા નંબરની અંદર પ્રભાવશાળી મંત્ર છે. ત્રીજા નંબરની અંદર દુર્લભ છે. હવે પહેલા નંબરનો પ્રશ્ન તો એ થાય કે નવકાર કોને મળે? નવકાર કોને મળે? શું નવકાર આપણને જન્મતાથી? ઘણા બધા લોકો એમ કે છે નવકાર જન્મતાથી મળી ગયો છે. આજે ઘણી બધી 5, 7, 10 દિવસ સુધી સઘન અભ્યાસ મેં પણ જે આચાર્ય ભગવાન પાસે કર્યો, અને એની અણમોલ વાત હું તમને કહું છું કે નવકાર બધાને મળી જાય. શું નવકાર તમને સરળતાથી મળી ગયો છે? શું નવકાર તમને સરળતાથી મળી ગયો છે, હા કે ના? તો કે શાસ્ત્ર વચન એવું કહે છે કે 70 કોડા કોડી સાગરોપમ, તમે પૂર્વ જન્મોમાં ભીષ્મ તપસ્યા કરી હતી. ધર્મરાજા પાસે તમે વારંવાર જાઓ અને વારંવાર જઈને એમ કહો કે मुझे नौकार दीजिए, मुझे नौकार नहीं मिल सकता है. जब आपके जीवन के अंदर आप भीष्म तपस्या 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का पाप आपका जब नष्ट हो जाता है, तब आपको नवकार सुनने को मिलता है. फिर से ध्यान से सुनना, अगले जन्म में आपने बहुत तपस्या की थी, बहुत 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 बहुत, तो तब आपको ये नमस्कार महामंत्र मिला है. नमस्कार महामंत्र की दुर्लभता को समझने के लिए प्रचंड पुण्य का, जिसको दूसरे जितने भी देवी देव मंत्र है यदि वो आपकी किस्मत में होंगे तो आपको प्राप्त होंगे चीज, लेकिन नमस्कार महामंत्र हमारा भाग्य का निर्माण करता है. दूसरे नंबर के अंदर सबसे पहले तो दुर्लभ है कि नवकार मंत्र ऐसे मिलते नहीं. पूरे ब्रह्मांड में जैन कितने होंगे? 40 लाख, कोई बोलते 50 लाख, कोई बोलते 80 लाख. 80 लाख जैनो छे. ये 80 लाख लोगों पास नवकार छे. શું 80 લાખ લોકો નવકાર ગણે છે? તો કે સૌથી પહેલા આપ લીખીએ કે નવકાર મંત્ર દુર્લભ है. નવકાર મંત્ર દુર્લભ છે. તો કે કેવી રીતે દુર્લભ? तो कि 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जब आपकी मोहनीय कर्म की स्थिति, ये खास लिखना पड़ेगा. क्यों लिखेंगे? कि आपने इतनी सारी तपस्या की है, इतनी सारी साधना की है, इतना सारा आपने भक्ति की है, दान किया है, तब खाली नवकार सुनने के लिए मिला है. નરકના જીવો નવકારને સાંભળી શકતા નથી. અને પશુ યોનિમાં પણ જ્યારે અત્યંત કોટીની ભાવધારાનું નિર્માણ થાય तो ये समड़ी नवकार संभળાવવામાં આવે तो ये समड़ी में से राजकुमारी बन जाती है. कभी भरूच के आगे से आपको गुजरने का अवसर मिलने और बारंबार बारंबार आज हमें ये करना है, 2-3 चीज. देखिए नवकार मंत्र तो आप माला तो बहुत सारे लोग गिनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों में, जैसे छींक आए तो क्या बोलना है? नमो रियंताणम. जैसे किसी का फोन उठाए तो क्या बोलना है? नमो रियंताणम. ભરૂચની રાજકુમારીને નવકાર કેવી રીતે મળ્યો? ભરૂચની અંદર આટલું જબરજસ્ત કોટીનું સમડી વિહાર મંદિર છે, અગલે જન્મની અંદર એને નવકાર મંત્ર સાંભળવા મળ્યો, પણ એ રાજકુમારી આખી દરબારની અંદર બેઠી હતી અને એવા સમયે કોક મંત્રીને છીક આવે છે અને જેવી છીક આવી અને એને બોલ્યું નમો અરિહંતાણમ. તમારું નમો અરિહંતાણમ આવી શકે છે. અને એ વખતે राजकुमारी चिंतन में चढ़ी गई कि नमो रियंताणम तो मैंने सुना हुआ है, नमो रियंताणम तो मैंने सुना हुआ है. और वो चिंतन की धारा में चढ़ते 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 देखा तो हो मैं पूर्व भव में कौन थी, और वहां पर मुझे किसी ने नमस्कार महामंत्र सुनाया. पोष दशमी में नमस्कार महामंत्र की विशेष आराधना करनी चाहिए. 2 साल पहले मैं जब शंखेश्वर में था तो इतना भव्य अठम की तपस्या के अंदर, क्योंकि सेवक मुख नवकार सुनीने एक नाग ने पण धरणेन्द्र ने पद्मावती बनावनार यदि कोई तत्व छे तो ये तत्वનું નામ છે નમસ્કાર.
कमठ तपस्या कर रहा है और लकड़ी के अंदर जल रहे खड़ 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 खड़। और उस वक्त प्रभु का वहां पर जाना हुआ और भगवान ने सेवक को बोला कि इनको बचाइए। और जैसे ही नवकार मंत्र वो नाद सुनता है, शुभ लेसिया के अंदर चढ़ जाता है, क्या बनता है वो, क्या बन जाता है? નવકાર માટેનું ખરેખર આજે થાણાવાસીએ આયોજન કર્યું છે, એનું જેટલી અનુમોદના કરીએ એટલી ઓછી છે। બગાસું ખાતા પતાસું મળી ગયું। राजकुमारी ने छींक के अंदर खाली नमो अर्यंताणम सुना और उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। एक देव की बात आती है कि एक देव भगवान के पास सामने हाजिर हुआ, भगवान मैं मरकर कहाँ जाऊंगा? नवकार आपकी जिंदगी में कितना कुछ बदल सकता है। सुबह से लेकर शाम तक कैसे आप नवकार मंत्र को जीवन में उतारेंगे। और आज हम 4 बार 4 चरण में नवकार मंत्र का जो जाप करेंगे। देव ने भगवान को पूछा, भगवान मैं मरकर मैं कहाँ जाऊंगा? તમારી પાસે પૈસા આવી જાય છે, તમારી પાસે રૂપ આવી જાય છે, તમારી પાસે બધું જ આવી જાય છે, એટલે આપણે ધર્મને થોડોક સાઈડમાં કરી દઈએ છીએ। और देवता से वही हुआ कि धर्म में कहीं चूक हो गई और भगवान ने बोला कि तू मरकर बंदर बनेगा। आप सबको यहाँ से कहाँ जाना है? कितने साल पहले तो जीना है? 500 साल। स्नेहलबेन કેટલા વર્ષ જીવું છે? जिज्ञाबेन કેટલા વર્ષ जीवानु છે? कब हम जाएंगे कुछ भी पता नहीं है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। कब क्या हो जाएगा हम देख रहे, हमारे कितने सारे सगे संबंधी आंख के पलक में चले जाते हैं। हमारे लिए बहुत गोल्डन समय आया है। जितना भी सुबह में नवकार, शाम को नवकार, दोपहर में नवकार, जैसे ही सुबह में आप उठते हो 5 चीजें मैं आपको लिखाता हूं। जैसे आप दरवाजा खोल रहे हो, सफेद कलर कहीं पर भी आ रहा है, आपको क्या बोलना है? नमो अरि हंता नम। चाहे दूध ले रहे हो, चाहे बेडशीट की घड़ी कर रहे हो, यदि भोजन को आप प्रसाद बनाना चाहते हो तो नमस्कार महामंत्र की आराधना करते 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 वो बंदर ने पूछा, वो बंदर होने वाला है? ओहो, मैं मरकर बंदर होने वाला हूँ। सम्यक दृष्टि जीव किसको बोलते हैं? जैसे ही पता चले कि मेरे साथ कुछ अलग होने वाला है, सोते नवकार, बैठते नवकार, उठते नवकार, जपते नवकार, भोजन करते नवकार, कहीं जाते हुए नवकार। ने देवे संकल्प કર્યો કે હું કયા જંગલમાં બનવાનો છું, કે આ પથ્થરોની શિલાઓ। અને એવા વખતે ઘટના એવી ઘટિત થાય છે કે એ શિલાઓ ઉપર બધી જ જગ્યાએ નવકાર મંત્ર લખી દે છે કે મારે મરીને આ જંગલમાં થવાનું છે, તો હવે હું શું કરું? ત્યાં આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું। અને જેવું ઈ ત્યાં જોવે છે પથ્થર ઉપર, નવકાર હું ક્યાં હતો? તો દેવ યોનિમાં મેં મારું ઉત્તમ જીવનનું પાલન ન કર્યું। અને એ વારંવાર વારંવાર નવકારને જોતા 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 આખું જીવન જેને નવકારમય બંદર પસાર કરી શકે। આજે તમને બધાને મારે પૂછવું છે કે રોજની નવકારની કેટલી માળા કરો છો શૈલાબેન? 10, 20, 50, 100 કેટલી કરો છો? એકઈ નહીં। कम से कम 9 लाख जपंता नरक निवारे। और आज की हमारी जो मुख्य थीम है कि जितने भी लोग 1.25 लाख नवकार मंत्र गिनते हैं वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। पूरे विश्व में एक नवकार एक ऐसा मंत्र है कि जो 24 घंटे चलता है। कितने घंटे चलता है? 24 घंटे। आपको प्रश्न होगा कैसे 24 घंटे चलता है? क्योंकि भारत के अंदर तो अभी 40 लाख लोग हैं। अकबर राजा के समय के अंदर 4 करोड़ लोग थे। जैन कितने थे? 4 करोड़। और संप्रति कालीन समय के अंदर 40 करोड़ जैन थे। क्योंकि यहाँ पर तो 40 लाख जैन है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र की बात आती है, वहां पर 20 तीर्थंकर भगवान, और एक एक तीर्थंकर भगवान के पास 100 करोड़ साधु और 100 करोड़ साध्वी जी भगवान प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र की साधना कर रहे हैं। कितने हुए टोटल? 20 गुणा 200 करोड़। सही बेन?
તમે એક જ અનમ્યુટ છો એટલે બધા જવાબ તમારે જ આખા મંડળ વતી આપવાના છે. સાચી સાચી સાચી. साधु साध्वी जी भगवान, ये तो साधु साध्वी की बात है। श्रावक कितने, श्राविका कितने, वो सभी लोग देवलोक के अंदर जितने भी सम्यक दृष्टि देवी देवता है करोड़ों की संख्या के अंदर, वो ज्यादातर नमस्कार महामंत्र का ध्यान करते हैं। तो जैसे ही सुबह में आप उठे, दरवाजा खोले, दूध लिया, सफेद बेडशीट की घड़ी की, सफेद कलर का शर्ट पहना, आप सब लोगों को क्या बोलना है? नमो हरि अंताणम। जैसे ही लाल कलर आता है, चाय बना दिया, आप आपके सारे भोजनों को, सारे भोजनों को अमृत बनाना चाहते हो, प्रसाद बनाना चाहते हो, तो क्या करेंगे? નમો સિદ્ધાંત. ચા જેટલી પણ બનાવો, લાલ કલરનું મરચું જેટલું પણ તમે ભોજનમાં નાખો, અને આજથી પ્રેક્ટિકલ अनुभव थाने में मैं आ रहा हूँ मार्च महीने के अंदर, आज देखने वाले हजारों लोगों को मैं बोलता हूँ कि ये 5 छोटी छोटी चीजें कीजिए, और जब मैं थाना में आऊं शिविर कराने के लिए, तब आपको मुझे बताना है कि कितनी खुशहाली आपके यहाँ पर 56 लोग, 56 लोग, नवकार की आराधना, अट्ठम की तपस्या, संपूर्ण मौन, मोबाइल का त्याग, सफेद वस्त्र, और उनके जीवन में 9 दिन में जो चमत्कार हुए हैं वो सभी मैं यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूं कि सिर्फ 9 दिन का समर्पण किया गया नमस्कार को जीवन कितना आपकी लाइफ के अंदर बदलाव ला सकता है। तो सफेद लाल कलर आवे तो नमो सिद्धाणम, येलो कलर हल्दी वाला दूध, पीड़ा कलर नी साड़ी, पीला कलर नी कोई पण वस्तु, मौसम्बी, नारंगी, पपीता, येलो कलर की जितनी भी चीज है आप हाथ में ले रहे हो, क्योंकि नमो आयर्याणम से उसे अभिमंत्रित करके खुद को खाना है और परिवारजनों को देना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएगी। बोलो वांद्रो त्या जोवे छे कि नवकार मंत्र ने संकल्प लीधो कि मारे मारा जीवन में एक पण हिंसाना काम नहीं करवा। आखो दिवस ध्यान करे અને પાણી પણ કેવું પીવે શૈલાબેન? પાણી પણ કેવું પીવે? અચિત પાણી. અચિત પાણી. અચિત પાણીનો ખબર છે ને ઉપયોગ? હા. સચિત પાણી નહીં. જ્યારે જીવનમાં તમને તમારી વેલ્યુ સમજાય છે, તમે તમારા જીવનમાં અનંત આનંદને પ્રાપ્ત કરો છો. ભયંકર ખરાબ ઉપરનો ટાઈમ થઈ જાય, સૂર્ય જબરજસ્ત તપતો હોય, આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ વાંદરો અચિત પાણી, ઉકાળેલું પાણી લેવા ક્યાં જાય? પણ જેને ધર્મ કરવો હોય છે એને કોઈ બાના નડતા નથી, અને જેને ધર્મ કરવો નથી એને કોઈ માર્ગ વાંદરાએ નક્કી કર્યું ઉપરથી જે નીચે ફળો પડી જાય એ જ ખાવાના. ગરમ ખળખળતું તળાવમાં પાણી થઈ જાય, પછી નવકારની શિલા ઉપર બેસી અને ધ્યાન કરતા 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 પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરે છે. બે દ્રષ્ટાંત. કદાચ તમે તમારા જીવનમાં ઉપયોગ ભૂલી જાઓ તો પણ નવકાર તમને તમારા ઈચ્છિત ગંતવ્ય સ્થાન ઉપર પહોંચાડે છે. શું આપને નવકાર ઉપર અતૂટ શ્રદ્ધા છે? પહેલો પ્રશ્ન. બીજા નંબરમાં કરોડો ભવની તપસ્યા કર્યા પછી તમને આ જૈન કુળ અને નવકાર મંત્ર મળેલો છે. તો આવા અણમોલ નવકારની સાધના કરતા કરતા જેમ રાજકુમારીને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય, નાગ નાગેન્દ્રને માંથી ધર્ણેન્દ્ર પદ્માવતી થાય, જેમાં વાંદરો બન્યા પછી પણ પાછી ઉચ્ચ ગતિને પ્રાપ્ત થાય. તો આવો બધા બરાબર જ્ઞાન મુદ્રા આવી રીતે બધા બેસી જશો. અમરથી ટટ્ટાર સુંદર મજાના તમારા માટે પૂજાબેને એવા જબરદસ્ત રાગોનું કમ્પોઝિશન કર્યું છે. તેમાંનો જે પ્રથમ રાગ છે એ રાગની ભાવધારાની અંદર આગળ વધતા 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 આપણે બધા ખૂબ એકાકાર બની અને નવકારનું પૂજન કરવું છે. નવકારનું વર્ણન ધ્યાન હાથ બધાને આવી રીતે જ રાખવાનું છે. કમર, શોલ્ડર જેટલું પણ અલગ અલગ પ્રકારનું વિધાન છે એ શુદ્ધિકરણ કરતા 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 ખૂબ એકાકાર બની નવકાર મંત્રનો ભાષ્ય જાપ આપણે બધા સાથે મળી કરતા કરતા
મન મસ્તિષ્ક શરીર વચન કાયા એવું શુદ્ધ બને, પવિત્ર બને, એકાકાર બને. નમસ્કાર ભાવ સાથે પ્રથમ ચરણની અંદર આપણે બધા સાથે મળી નવકારનું એવું ગાન કરીએ કે આ સંગીતના વાદ્ય સાથે શાસ્ત્રીય રાગ સાથે આખા ઘરના વાઇબ્રેશન પણ પૂર્ણ પવિત્ર થઈ રહ્યા છે. હું પણ પૂર્ણ શુદ્ધ બની રહ્યો છું. હું પણ પૂર્ણ પવિત્ર. આંખો બંધ. સૌથી પહેલા પરિવારની રક્ષા સાથે જોઈન્ટ પરિવારમાં જેટલા પણ લોકો રહી રહ્યા છે એ બધાનું કલ્યાણ થાય. કદાચ જોઈન્ટ પરિવારમાં નથી તો આપણે પતિ પત્નીના વિચારોનું મિલન થાય, ખૂબ પરિવારની રક્ષા થાય અને ધર્મ ભાવના આપણી બધાની સુદૃઢ બને. એવા ભક્તિ ભાવ સાથે આપણે બધા પ્રથમ ચરણની અંદર આ મહામંગલકારી નમસ્કાર મહામંત્રો અહીંથી મ્યુઝિક વાગશે. તમારે મંદ મંદ સ્વરે જ્ઞાન મુદ્રા એટલા માટે કરવામાં આવી છે કે જેટલા પણ ચિંતાના તણાવના વાદળો કે આગળ શું થશે, આજનો જેને પણ ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો છે એની આખી જિંદગી સારામાં સારી જ થવાની છે. આગળ શું થશે એ પ્રશ્નનું આજે પૂર્ણ વિરામ આવી ગયું છે. હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું. પેલો સંકલ્પ નમસ્કાર મહામંત્રના આધારે હું પૂર્ણ સમૃદ્ધ છું. મારા દ્વારા 2021 ની અંદર કોટ્યાધિપતિ કરોડો રૂપિયાનું દાન કરી રહ્યો છું, કરોડો રૂપિયાની ભક્તિ કરી રહ્યો છું. અને ત્રીજા નંબરની અંદર હું પૂર્ણ શાંત છું, વાસ્તવિકતાની સાથે જીવી રહ્યો છું. આ ત્રણ સંકલ્પ સાથે પહેલા આપણે નમસ્કાર મહામંત્રની સાધના બધાએ બરાબર ધીરે ધીરે મંદ મંદ સ્વરે પેલા આંખો બંધ કરી તમારા જે પણ ગુરુદેવ છે એને યાદ કરતા કરતા ગુરુ મુખેથી નવકાર તમને મળી ગયો છે અને નવકાર જાપનું આરાધન કરતા કરતા બધાનું કલ્યાણ થાય, મંગલ થાય. આવો કમર ગરદન ડોક બધાની સીધી સ્ટ્રેટ અને બધા સાથે મળી નવકાર જાપનો પ્રારંભ કરીશું. ઓમ નમો સીતારામ. ઓમ નમો હરિહંતાણમ. ઓમ નમો સિદ્ધાણમ. ઓમ નમો આયર્યાણમ. ઓમ નમો ઉબચાયણમ. ઓમ નમો હરિયાણમ. ઓમ નમો પુરજાયણમ. નમો લોય
એસો પંચ સર્વ પાપણાસણો મંગલાણં ચ સર્વેસિં પરમં અવૈ મંગલમ ઓમ નમો હરિહંતારમ ઓમ નમો સિદ્ધારમ ઓમ નમો આયર્યાણમ ઓમ નમો ઉપચાયાણમ નમો લોય સબ સાગુણમ એસો પંચન મુક્તારો સર્વ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સર્વેસિં પરમં અવૈ મંગલમ પરમં અવૈ મંગલમ ઓમ નમો હરિહંતારમ ઓમ નમો સિદ્ધારમ બધા મનની અંદર જાપ કરતા કરતા સાથે મળીને બોલવાનું છે. ઓમ નમો ઓમ નમો આયર્યાણમ ઉપચાયાણમ ઓમ નમો ઉવચાયાણમ નમો લોય સબ નમો સાગુણમ એસો પંચન મુક્તારો સર્વ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સર્વેસિં પરમં અવૈ મંગલમ પરમં અવૈ મંગલમ नमस्कार महामंत्र की अद्भुत आराधना साधना करते हुए सबसे पहले नमस्कार महामंत्र का भाष्य जाप, उसके बाद उपांशु जाप જે આપણે બધા સાથે મળીને બોલી રહ્યા છીએ. યોગાનુયોગ આપણે જે 500 કરતા પણ વધુ લોકો આ સાધનાની અંદર જોડાયા છે. ગણિતનો નિયમ છે કે એકની બાજુમાં એક મૂકો, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2 બને છે. જ્યારે મંત્ર સાધના એવું કે છે કે એકની બાજુમાં એક મૂકવામાં આવે તો 11 બની જાય છે. બધા પાછા પિરામિડ અવસ્થાની અંદર બધા બેસી પોતાના ઢીચણ ઉપર હાથ રાખતા રાખતા અનંત કોટી બ્રહ્માંડ ને નવકાર મહામંત્રનો અજપ. આજે 4 વસ્તુ મારે તમને લખાવી છે. પહેલા નંબરની અંદરની વસ્તુ છે નવકાર દુર્લભ છે. જ્યારે તમને કોઈ વસ્તુનું વેલ્યુ સમજાય છે કે તમે મહાકોટીની સાધના, મહાકોટીનું પુણ્ય, મહાકોટીનો તપ, મહાકોટીનો જપ કરેલો છે, ત્યારે માત્ર તમને આ નવકાર સાંભળવા મળ્યું છે. થાણાનો જે પરિવાર
25 વર્ષ સુધી બનાવવો, ચલાવવો, જોડવો, હજારો રૂપિયાનું યોગદાન કરવું, નવા નવા કાર્યક્રમ કરવા બહુ મોટી સાધના છે. એટલે પહેલા નંબરની અંદર નવકાર મંત્ર દુર્લભ છે. બીજા નંબરની અંદર નવકાર મંત્ર સ્વતંત્ર છે. અને નવકાર મંત્રની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની 3 શક્તિઓ છુપાયેલી છે. પહેલા નંબરની ભૌતિક શક્તિ. ભૌતિક શક્તિ એટલે નવકાર કે અંદર તમામ પ્રકારનું જે સુખ, સંસારનું સુખ પણ તમે આજે આ કાર્યક્રમમાં પણ બેઠા છો, આજે એક ભાવ કે વિશ્વની તમામ ઘટનાઓ નવકાર દ્વારા જ થવામાં આવી રહી છે. નવકારથી જે ન મળે એ જગતમાં બીજા શેનાથી ન મળે? તો કે પહેલી વસ્તુ શું? નવકારનો સાધક પાસે પૂર્ણ ભૌતિક શક્તિ હોય. એના પછી બીજા નંબરની અંદર શક્તિ આવે છે દૈવી શક્તિ. નવકાર મંત્ર દ્વારા તમે બીજા માટે પણ જયારે પ્રાર્થના કરો છો તો એ દિવ્ય શક્તિનો અનુભવ સામેવાળાને પણ થાય છે. ટાટા હોસ્પિટલનો એક જબરદસ્ત કોટીનો દ્રષ્ટાંત, કેન્સરનો દર્દી જામનગરથી ત્યાં કેન્સર માટે ત્યાં જાય, ઘણી બધી ટ્રીટમેન્ટ કરે, કોઈ ફરક પડે નહીં. જેને પણ કેન્સર છે, જેને પણ ભયંકર બીમારીઓ છે, માત્ર નમસ્કાર મહામંત્રના શરણે આવી જાઓ. અચિંત્ય ચિંતામણી નમસ્કાર મહામંત્ર શું કરી શકે છે એનો પ્રગટ પ્રભાવી ટાટા હોસ્પિટલ, વર્લ્ડની નંબર 1 મુંબઈની અંદર સૌથી મોટી જે હોસ્પિટલ કેન્સરની છે, એ એવું કહે છે કે આવું કેવી રીતે બની શકે, અમે સંશોધન કરી રહ્યા છીએ. ઘરે આવી જાય, ડોક્ટરે કીધું કે હવે આ કેસમાં કોઈ બચવાના ચાન્સીસ નથી. અને એવા વખતે એ પરિવાર ગુરુ માર સાહેબ તમને ખબર પડી જાય કે હવે કોઈ ચાન્સ નથી. અને એ વખતે તમને યાદ આવે ભક્તામર, એ વખતે યાદ આવે નવકાર મંત્ર. એ ભાઈએ નક્કી કર્યું કે 2, 5, 7, 10 દિવસ જીવવાનું છે. ચલો કમસે કમ છેલ્લા સમયમાં તો નવકાર ગણી લઈએ. કોઈ વ્યક્તિને પરાણે પણ નવકાર તમે ગણાવો છો તો શાસ્ત્રકાર ભગવાન એમ કે છે તો પણ લાભ થાય છે. તમારા ઘરની અંદર ધીમે ધીમે નવકાર મંત્રનું મ્યુઝિક તમે મૂકી દો. તમારા પતિદેવ, તમારા બાળકો હલન કરે, ચલન કરે, ચાલતા જાય, હાલતા જાય, જમતા જાય, ઘરમાં પેલા તૈયાર થતા હોય, અને એવા સમયે પણ કાનની અંદર એ નવકાર મંત્રનો ન પડી જાય, એવા સમયે પણ નવકાર મંત્રનો હંતાણમ પડી જાય તો પણ એક અક્ષરથી 7 સાગરોપમનું પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે. અને ટાટા હોસ્પિટલથી લાવેલો વ્યક્તિ એને થયું કે ભાઈ કોઈ જીવવાનો આરો બચ્યો નથી, કશી વસ્તુનો સપોર્ટ નથી, તો શું કરીશું? કે એવા સમયે નવકાર મંત્ર ઉપરી માણસ ચડી જાય છે. અખંડ નવકાર ધૂન અહીંયા સુમેરુ નવકારમાં તીર્થમાં 10 દિવસથી 24 કલાક, રાત્રે 12 વાગે, 2 વાગે, 4 વાગે, 6 વાગે, गमे कभी भी आप आइए, सभी साधक नवकार मंत्र का जाप कर रहे हैं. અને જામનગરના વ્યક્તિએ પણ એવા જાપ કર્યા. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ. पोष दशमी का 8th की तपस्या और 3 का गुणांक ऐसा है कि अवश्य में आपके जीवन में परिवर्तन को लाता है. तीजा दिवसे नवकार जपता जाए, जपता जाए, जपता जाए. साँजनो समय एवी वोमिट થઈ, એટલો બધી ગંદકી, એટલો બધો બગાડ શરીરમાંથી બહાર નીકળો, और जैसे वोमिट हुई और व्यक्ति बेहोश हो गया. घर के सभी लोगों ने मान लिया कि बस तैयारी करो, अब समय आ गया है. और इतिहास ऐसा कहता है कि 5, 10, 15, 20 मिनट जैसे हुई, एक पानी का बूंद भी यहां से नीचे उतारना मुश्किल था. नवकार के प्रभाव से उन्होंने बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी दीजिए. आधा ग्लास पानी पिया, सारे घर वाले चौकन्ने हो गए. कई महीनों से हजारों रुपये का जो खर्चा किया, ट्रीटमेंट कराई, कोई फर्क नहीं पड़ा. 3-4 दिन में क्या हो गया? वापस उनको बंबई लेकर के जाते हैं. डॉक्टरों ने सारे रिपोर्ट किए और आश्चर्य के साथ में बताया कि जो काम दवा नहीं कर सकता है, वो काम दुआ नहीं, वो काम नवकार कर सकता है. मंगलकारी श्री नवकार, जय जय बोलो श्री नवकार. नवकार के गान के अंदर हमारे माता पिता को धन्यवाद है, हमारे गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम है. और हजारों की संख्या में हमने आसो महीना की होली लंदन के अंदर करवाई. और पता नहीं वो एक ऐसी श्रृंखला, ऐसे समय के अंदर एक साधना का परिबल का शुभारंभ हुआ कि जिनके माध्यम से आज हजारों लोगों ने 1.25 लाख नमस्कार महामंत्र की संकल्प यात्रा स्टार्ट कर दी. और अहमदाबाद के अंदर हमारे एक रचना बेन करके है,
उनकी भावना देखो, जिनको जो भी मिले उसको एक ही प्रभावना कि आप 1.25 लाख नवकार मंत्र गिनिए। उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से आज सैकड़ों साधु साध्वी जी भगवान भी, सैकड़ों साध्वी जी भगवान भी नवकार मंत्र की आराधना से जुड़ गए। यहाँ पर 3 साध्वी जी भगवान विराजमान है। उनके जिंदगी में कैसी है शिविर से चमत्कार आया वो वीडियो में डालने वाला हूँ, लेकिन हमारी बात चल रही थी कि सफेद कलर आए तो बोलना है नमो अरिहंताणम, लाल कलर आए तो बोलना है नमो सिद्धाणम, पीला कलर आए तो बोलना है नमो आयर्याणम। और सब्जी सुधारते सुधारते आपका घर, आपका भोजन। आज एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक का आपको भरपूर रोज सुबह में जितनी भी बार आप पानी पियो, पहले तो आप सब लोग 1.25 लाख नवकार मंत्र का जितने भी लोग आज आए हैं वो सब संकल्प लेने वाले ही है, लेकिन अभी ऐसा भाव नहीं हो रहा है, ऐसा मन नहीं हो रहा है रोज की 20 माला, रोज की 5 माला, रोज की 3 माला कैसे करूं। तो आप जितनी भी बार पानी पीते हो, हाथ को आपको ऐसे रखना है, नजर के सामने ऐसे आप हाथ रखेंगे, उसमें ग्लास रहेगा, और आपको कम से कम जितनी भी बार, आधी सेकंड की ये विधि है, જેટલી પણ વખત પાણી તમારા હાથમાં આવે તમારે એક વાક્ય બોલવાનું છે કે હું નમસ્કાર મહામંત્રનો સર્વશ્રેષ્ઠ સાધક છું। ફરીથી સ્નેહલબેન, હું નમસ્કાર મહામંત્રનો સર્વશ્રેષ્ઠ સાધક છું। બસ જેટલી પણ વખત તમે પાણી પીઓ એટલી વખત તમે આ જો વાત બોલવા માંડશો, નવકાર પ્રત્યે જે પ્રીતિ થશે, નવકાર પ્રત્યે જે ભક્તિ થશે, तो कि नवकार के अंदर 3 शक्तियां रही हुई है। पहले नंबर में मैंने बोला है नवकार मंत्र दुर्लभ है, नवकार मंत्र स्वतंत्र छे, અને નવકાર મંત્રમાં 3 શક્તિ છે। તો 3 શક્તિ કઈ? ભૌતિક શક્તિ, દેવી શક્તિ, અને છેલ્લે છે આધ્યાત્મિક શક્તિ। સૌથી પહેલા તમારે ભૌતિક ઘર જોઈએ, ગાડી જોઈએ, બંગલા જોઈએ, સારું રૂપ જોઈએ, ઘરેણા જોઈએ, પૈસા જોઈએ। ભગવાન કે ચલો બધું આપી દીધું। એના પછી દેવી શક્તિ, તમારી પાસે આવી ગયું, હવે તમે નવકારની પ્રભાવના કરો। सैकड़ों लोगों को नवकार के साधक बनाओ, नवकार के आराधक बनाओ, नवकार के भक्त बनाओ। और यदि वो आपने बना लिया तो देवी शक्तियां खींच करके नीचे आती, और साथ साथ में वो सब कुछ हो गया। यहाँ पर एक चीज समझ लेना, एक खास 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 महाभारत का एक दृष्टांत, पांडवों का एक अद्भुत दृष्टांत। इस जगत के अंदर पांडवों जबरदस्त कोटि के नमस्कार महामंत्र के साधक थे। इतनी कठिन कठिन साधना करते करते जंगल में गए सब 5 पांडवों, और उनके साथ में सारे वनवास हो गया, और एक कुटीर बना करके रहते थे। बहुत दुखी हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते थे। ये जैन महाभारत के अंदर पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी द्वारा लिखित ये मैं सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। बहुत दुखी, झुपड़ा बनाए, वावाजोड़ा तूफान आ जाए, झुपड़ा टूट जाए, पशुओं की आवाज, परेशान हो गए। अब करे तो करे क्या, ये तो कोई जीवन है। पांडु पुत्र सारे दुखी दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके दुर्योधन को हरा देते हैं, या तो उनके शरण में चले जाते हैं, और ये सहन नहीं होगा। और ऐसे में ऊपर से चारण मुनि का विमान गया। उन्होंने आवाज लगाई, चारण मुनि बताइए, जब आपका किस्मत बदलने वाला होता है, आज ही क्यों, ये 9 तारीख ही क्यों हमने चुनी? आज ही भगवान का दीक्षा कल्याणक, और लाखों की संख्या के अंदर पार्श्वनाथ भगवान के भक्तों ने अट्ठम की महातपस्या की। आज आप अकेले नवकार नहीं गिन रहे हो, हजारों की संख्या के अंदर अपने घर में, तीर्थ में, नागेश्वर में, जिरावला में, शंखेश्वर में, अहमदाबाद में, बंबई के अंदर साधकों अपने हाथ में माला लेकर के भगवान को रिझाने का महामंगलकारी प्रक्रिया के अंदर आज आप भी सम्मिलित हो चुके हो। और दो चारण मुनि नीचे आए और उन्होंने बोला अब क्या करेंगे, बहुत कष्ट है। चारण मुनि जी कुछ उपाय बताइए। न खाने का ठिकाना है, न पहनने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, चारों तरफ से डर डर डर, जीना हमारा खलास हो चुका है। चारण मुनि ने बोला कि ये तो अभी शुरुआत है, मुझे जो मेरे ज्ञान में दिख रहा है, दुर्योधन ने एक ऐसी शक्ति हासिल कर ली है, एक ऐसी देवी को सिद्ध कर ली है, और वो देवी आपको पूरी तरह से मार देगी, चिंता नहीं छोड़ेगी।
क्या बात कर रहे हो? नकुल ने पूछा, अब बात तो कर रहे हो लेकिन उसका कोई ना कोई तो निवारण होगा। बहुत कर्जा बढ़ गया है, घर में कंकास बढ़ गया है, क्लेश बढ़ गया है, रोग आ गए हैं। हर समस्या का समाधान नौकार है। पूछा उन्होंने, बोले एक चीज है, एक चीज ही उस देवी से आपको बचा सकते हैं। और उस चीज का नाम क्या था? अखंड नौकार जाप। आज भले मंडल ने मेरे को जूम के ऊपर बुलाया है, लेकिन एक दिन का ऐसा मंदिर के अंदर, उपासना के अंदर एक हॉल रख करके 24 घंटे की साधना, जैसे 2 महीने 3 महीने में वातावरण नॉर्मल हो जाए, मैं वो अनुभूति आपको कराना चाहता हूं कि कितनी दुर्लभ रक्त चिंतामणि आनंद का पुंज आपको मिला है। नौकार किताबों के लिए नहीं है, नौकार गिनने के लिए नहीं है, नौकार अनुभव करने के लिए है। और वो 10 दिन से हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। चारण मुनि तो नमस्कार महामंत्र की साधना बता के, एक देवी आने वाली है और देवी आपके ऊपर इतना प्रकोप करेगी, आपको जीना, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट। जैसे ही सब लोगों ने सुना, नक्की किया कि हम सभी लोग अखंड धारा से नौकार गिनेंगे। 1 घंटा एक नौकार गिन करके, जिसे खड़े हो दूसरा बैठे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सब लोग बैठना स्टार्ट कर दिया और दम लगा के बुलंद आवाज के साथ में। और दुर्योधन ने वहां पर सिद्धि प्राप्त कर ली, देवी को बोला हाजिर हो। और वो वन कुटीर के अंदर, पंचवटी के अंदर जो 5 पांडव है, उसका वध करने का है। नौकार क्यों बारंबार गिनना चाहिए? नौकार घर में भाष्य जाप क्यों करना चाहिए? यदि आप चाहते हो कि आपके घर वाले प्रेमाण हो जाए, एक दूसरे को खूब प्रेम करें, तो दिन में 10 मिनट 15 मिनट आप खुद बैठ जाइए उनके कटाक्षने के ऊपर और भाष्य जाप कीजिए। वो ध्वनि तरंग आपके घर के अंदर इतना प्रेममय वातावरण निर्माण कर देगा, आनंद का वातावरण निर्माण कर देगा। किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई तू क्रोध ओछो कर। ના બાજુ વાઇબ્રેશનની તાકાત શું ચીજ છે? दम 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 करती वो देवी आ गई उनको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर अखंड जाप का 2 दिन 4 दिन 5 दिन में इतना वातावरण बना कि वो 100 मीटर 200 मीटर तक उनकी जो ओरा बन गई। देवी इतना आवाज करती है कि तू जो मंत्र बोल रहे मंत्र बंद कर। 100 मीटर के अंदर आने की कोशिश कर रही है, अंदर ही नहीं आ सके। बहुत दम पछाड़ा किया, बहुत उनके मंत्र तीर सब फेंके, लेकिन नौकार की ओरा का इतना व्याप्त बढ़ गया था। वापस वो देवी दुर्योधन के पास आती है कि मैं कैसे भी करके उनके करीब नहीं जा सकती हूँ। और यहाँ पर ऐसे जाप, ऐसी साधना, ऐसी जबरदस्त आराधना। वापस गई, पहले 100 मीटर, फिर 500 मीटर, ओरा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और अंत के अंदर देवी ने परास्त होकर के बोला दुर्योधन को कि मैंने तुझे वरदान तो दे दिया है, लेकिन वो नौकार के साधक का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगी। तुझे और कोई कार्य हो तो मुझे दे देना। कहने का तात्पर्य इतना है कि मरणांत कष्ट, करोड़ों रुपए का कर्जा क्यों ना हो गया हो, 50 हो, कोर्ट में केस क्यों नहीं चल रहे हो, तलाक हो गया हो, शादी नहीं हो रही, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नौकार से नहीं हो सकता। और वो अनमोल मंगलकारी नौकार, तो के भौतिक शक्ति, देवी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। एक बार ऐसा हो गया, पंचवटी के अंदर 5 पांडव और सब लोग एक जंगल के अंदर रहते थे। मैं सारी घटना आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि कितनी अनमोल कोहिनूर रत्न। मैं कितनी बार एक जगह पे दृष्टांत जरूर देता हूँ कि नौकार आपको जिसने दिया हो ना, उनका चरण चूम लेना। सूरत के अंदर पालीताना के अंदर उपदान था और एक आचार्य भगवान ने उपदान के अंदर नमस्कार महामंत्र की दीक्षा प्रदान की। और क्या किया दीक्षा लेने वाले, उसमें से एक बहन ऐसे आगे आए, शरीर के ऊपर जितने भी गहने थे, करीबन 40-50 लाख रुपए की, कोट्याधिपति, सारी बंगड़िया, सारी चेने, सारी बुट्टी नथनी जो भी था,
कि इतना अनमोल नौकार मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है, जितना भी मैं अर्पण करूं उतना कम। पंचवटी के अंदर सारे पांडव थे और पांडवों को मापा, दुर्योधन को पता चल गया था, क्या करेंगे, हमला कर देते चलो फटाक से। ये तीन शक्ति कैसे काम करती है? भौतिक शक्ति, देवी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। दुर्योधन के पास भौतिक शक्ति थी, और जैसे ही पंचवटी के अंदर वो एंट्री करता है, बाहर एक यक्ष का मंदिर था, और यक्ष के मंदिर ने उनको रोका कि भाई तू मेरी जगह के अंदर जा रहा है, मुझे पूछ के जा, क्योंकि इस धरती का मैं राजा हूं, मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, मैं तेरे जैसे छोटे देव को क्या क्या पूछूंगा, मुझे जहां जाना मैं जा सकता हूं। हस्तिनापुर, अहंकार मनुष्य को गिरा देता है। देव ने बोला कि तू राजा बाजा जो कुछ भी है, ये पूरी जो पंचवटी है उसका क्षेत्रपाल मैं हूं, मुझे पूछ ले खाली तू कि मैं अंदर जा रहा हूं। दुर्योधन ने बोला नहीं पूछूंगा। क्या करेगा? जिंदगी जीववानी अणमोल रीत ई नौकार छे। नहीं 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 पूछेगा, चल आजा युद्ध करते हैं। अर्जुन बोला चल आजा युद्ध करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम दुर्योधन ने बोला, युद्ध किया, और यक्ष ने ऐसा नागपाश, ऐसा नाग बनाया, और वो तीर से फटाक करके दुर्योधन के ऊपर फेंका। दुर्योधन के चारों तरफ गोड़ राउंड विट गया, फटाक करके गिराया, गिरा करके कॉर्नर के अंदर डाल दिया। नौकार में कितनी जबरदस्त शक्ति है उनका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जो चीज मम्मी ने कान में सुला दी है, कभी कभी माता दादियां छोटी छोटी ऐसी गलती करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को नौकार से नफरत हो जाती है। काका आएंगे, मामा आएंगे, चाचा आएंगे, बेटा बेटा बोल 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 नौकार। कोई भी घर में मेहमान आएगा, अपन क्या करेंगे? नौकार के प्रति हमें प्रेम बढ़ाना है, भक्ति बढ़ाना है। जैसे ही दुर्योधन की पत्नी को पता चला, बहुत दुखी हुई। सभी द्रोणाचार्य जी है, भीष्म पितामह है, उनके पास जाकर के बोलती है कि मेरे पति के साथ ऐसा हो गया, और उनके साथ सारे सैनिक भी डर कर भाग के चले गए। दरबार में बोला, क्योंकि भौतिक शक्ति के सामने देवी शक्ति, यक्ष के पास क्या थी? देवी शक्ति थी। दुर्योधन हार गया, मंदिर में सड़ रहा है, और उनकी भानुमति पत्नी अब क्या करे? अंत में पता चला कि उनको बचाए, सिर्फ बचा कौन सकता है? तो इसको पांडव ही बचा सकते हैं, लेकिन जबरदस्त दोनों के बीच में द्वेष वैरभाव, तब जाए तो जाए कैसे? इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा दुखी और दुख का कारण हमारी कल्पना है। भानुमति ने सोचा, अब मैं अर्जुन के पास जाऊंगा, युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। अर्जुन एक ही ऐसा व्यक्ति था कि जिसको वो अपने पति को छुड़ा सकता है। वो क्या सोचेगी कि इसका भाई, जिन्होंने इनका पति, जिन्होंने हमारी जिंदगी जीना आराम कर दी है, उनके पास में जाऊंगा। जता पहला કેટલા બધા સંકલ્પ અને વિકલ્પોને વિચારે છે, અને ઘણી બધી વખત આપણે ઘણું બધું વિચારતા હોઈએ છીએ, પણ તમે જ્યારે લાઈવમાં જાઓ છો, આખી આખી ઘટના ચેન્જ થઈ જાય છે। અને આ બાજુ ભાનુમતી સાથે બે સખીઓ સાથે જાય છે પંચવટીમાં। એના પતિને એન્ટ્રીમાં યક્ષને જોવે છે, મંદિરમાં એનો પતિ સડી રહ્યો હોય છે, બહુ દુઃખ થાય છે। એની બે સખીઓને મોકલે છે, ભાઈ હું તો કે રાણી કહેવા, હું જો જઈશ तुला 5 पांडवो શું વિચારશે? બે સખીને મોકલું ને કે ભાનુમતીજી આવ્યા છે। યુધિષ્ઠિર આગળ બેઠા હતા, યુધિષ્ઠિરે તરત કીધું, ઓહો હો, મારા ભાભી માતા સમાન આવ્યા છે, દ્રૌપદી તમે જાઓ અને એનું સ્વાગત કરો। મનની અંદર કલ્પના શું કરી હતી કે હું ત્યાં જઈશ તો શું વિચારશે? અહીંયા તો સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। ધ્રુષ્કે ને ધ્રુષ્કે રડવા માંડે છે। તમે બધું જાણો છો કે તમારા ભાઈનો સ્વભાવ કેવો છે, તમારો ભાઈ ફસાઈ ગયો છે। નૌકારનો સાધકનું સરળ સરનામું, સરળ ડેફિનેશન, નૌકારનો સાધક કેવો હોય કે મારો ભાઈ ક્યારે પણ ટેન્શનમાં હોય, સૌથી પહેલા કોણ ઊભું રહેશે? આ બાજુ નકુલ, ભીમ, બંને જણા જેવી, આમ ભીમને તો હસવું આવી ગયું, બહુ સરસ થયું, બહુ સરસ થયું, અમારી પત્તર ઠોકી નાખી હતી આણે તો,
જીવવાનું આરામ કરી નાખ્યું હતું. બહુ સરસ થયું, મજા આવી ગઈ. યુધિષ્ઠિર કે, એ ભીમ, ભાઈ આપણો દુખી છે ને તને હસવું આવે છે? ખરાબ સમયે જે સાથે રહે તે સાચું સ્વજન છે. કહેવાતા સ્વજન તો હજારો છે. અર્જુન ઉભો થઈ જા. મારો ભાઈ દુખી હોય અને હું બેસી શકું? યુધિષ્ઠિરની ભાવના, નૌકારના સાધકની ભાવના. નૌકાર તો ઘણા બધા ગયણા, પણ આજથી નૌકારને ફળવાની શરૂઆત કરવાની છે. આજે આપણું લિસ્ટ બનાવવાનું છે કે હું કોને કોને ઓળખું છું, એમાં કોણ કોણ દુખી છે, અને એની મારામાં સામર્થ્ય છે, અને છતાં પણ હું યદી એના માટે ઉપયોગી નથી આવતો, તો હું બાલ કક્ષાનો પણ જૈન શ્રાવક નથી, નૌકારનો સાધક નથી. અને એ વખતે અર્જુન નીચે જાય છે. નૌકારની અંદર 3 શક્તિઓ રહેલી છે, એનું આપણે દ્રષ્ટાંત સમજી રહ્યા છીએ. અને બહાર આવીને યક્ષને કહે છે કે અર્જુન યક્ષ દુર્યોધનને છોડી દે. શું કહે છે? એ નહીં છોડું. એ અર્જુન તમે કેટલા સારા છો ને, તમારો ભાઈ આને છોડાયો છે કે આને હું છોડીશ તો તમારી ઉપર હુમલો કરશે. હું તને યક્ષ કહું છું આને છોડી દે. એ નહીં છોડું તો કે યુદ્ધ કરવા આવી જા. આ દુનિયાની સૌથી મોટી શક્તિ હોય તો એ છે સજ્જનતા. આધ્યાત્મિક શક્તિમાં સૌથી પહેલું નામ શું આવે છે? સજ્જનતા, સમર્પણતા, સહાનુભૂતિ. અને એ વખતે યક્ષ કહે છે કે છોડવા જેવો નથી, આ છોડશો પાછી તમારી પત્તર ઠોકી નાખશે, ખરેખર એને હળવા દો, 2, 5, 10 દિવસમાં સીધો થઈ જશે, કે મારો ભાઈ છે. અને દુર્યોધનની હરામી પણ કે નાલાયક પણ દેવતા એને છોડી દીધો. અને એ એટલું પણ બોલીને જતો નથી કે ભાઈ તમે ખૂબ સારું કર્યું. સજ્જનોના જીવનનો વ્યવહાર કેવો હોય છે, નૌકાર સાધકોનો વ્યવહાર કેવો હોય છે, અને નોર્મલ વ્યક્તિઓનો વ્યવહાર કેવો હોય છે. આવો બધા ખૂબ સાથે મળી આવા નૌકારના વિશિષ્ટતમ મહાસાધક બનીએ, આરાધક બનીએ. બીજા ચરણનું મહામંગલકારી નૌકાર મંત્રનું ગાન, અને ત્યારબાદ પૂજાબેન આપણને બધાને નૌકારની એક વિશિષ્ટ ભાવધારાની અંદર આગળ લઈ જશે. Om Namo Hariya.
सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए सभी अपनी अपनी हाथों को रब करते हुए एनर्जी पुट करेंगे और हमने जो नमस्कार महामंत्र की भावधारा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ के अंदर जो आज हम बात कर रहे हैं, जिस पवित्र भावधारा में 10 दिवस से वहां पर पवित्र ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और जो 3 दिन हमारे पोष दशमी के दिवस पर जो भव्याति भव्य अनुष्ठान हुए हैं, उस सभी अनुष्ठानों के माध्यम से सभी के जीवन में खुशहाली आए, शांति आए और हम सच में दिल से सच्चे नमस्कार महामंत्र के साधक बने। इस आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम साथ में सीखेंगे कि नमस्कार महामंत्र की हीलिंग हम क्या ऐसा करें कि जैसे हमने आज किचन के बहुत सारे टिप्स गुरुजी ने दिए कि आप जब भी सफेद कलर देखते हैं नमो हरिहंताणम बोलिए, तो ऐसे कलर्स के ऊपर जैसे जैसे हम कंसंट्रेट करते जाते हैं, फोकस करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे चक्रास के अंदर भी पॉजिटिव पावर आती जाती है। तो हम किस तरीके से नमस्कार महामंत्र से हीलिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम कलर्स के साथ साथ हम सिद्धम की जो आराधना करते हैं और सेल्फ हीलिंग करते हैं, हम ओम स्वस्तिक त्रिशूल की आराधना करते हैं और हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। हीलिंग सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हीलिंग क्या होता है। तो जब हम हमारे खुद के अंदर का एक पॉजिटिव पावर डेवलप करते हैं, जब हम हमारे अंदर उस एनर्जी को फील करना शुरू कर देते हैं, वो एक्चुअली बोला जाता है हीलिंग। बहुत सारे समय से हम हीलिंग सीख रहे हैं, अलग अलग बहुत सारी थेरापीज को हमने सीखा है। आज नमस्कार महामंत्र का ये भव्याति भव्य हमारा प्रसंग और जिसके अंदर श्री थाना गोघरी महिला मंडल ने जो ये उत्तम लाभ लिया है, शैला बेन, ज्योति बेन और बहुत सारे लोगों ने, जो कार्यकर्ताओं ने भी जो इसके अंदर भाग दिया है, बहुत 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 तहे दिल से अनुमोदना करते हुए पहले हम सीखते हैं, जानते हैं नमस्कार महामंत्र की हीलिंग। आप सबके पास नोटबुक और पेन है तो आप लिख भी सकते हैं कि जैसे जाप की जो विधि है, कलर्स के हिसाब से हमें जाप करने हैं। तो जब भी हम नमस्कार महामंत्र का जाप करेंगे, सीधा सीधा नमस्कार महामंत्र तो हम बोलते ही हैं। हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जब से बर्थ हुआ है तब से हम नमस्कार महामंत्र के आराधक हैं। हम नमस्कार महामंत्र सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, सुनाते आए हैं, लोगों को इंस्पिरेशन देते आए हैं कि नमस्कार महामंत्र जैन धर्म का सारभूत अनंत आनंद और अखंड आनंद का परम मंत्र है। शाश्वतो जे मंत्र, जे मंत्र ने આપણે કહીએ છીએ કે શાશ્વતો મંત્ર, તો આ શાશ્વતો મંત્ર આપણા જીવનમાં, આપણા રોમે રોમમાં અને આપણા ચક્રાસને ઓરાઓ પર આપણે કઈ રીતે કલર્સના માધ્યમથી, કઈ રીતે પંચ તત્વોના માધ્યમથી, क्या ગ્રહની ઉપાસના કરવાથી આ નમસ્કાર મહામંત્રનું ફળ આપણે લઈ શકીએ। તો આવો આપણે જાણીએ, શીખીએ, સમજીએ કે અલગ અલગ જે આપણા પંચ તત્વ છે, तो पंच तत्वनी साथे हम किस तरह से नमस्कार महामंत्र की साधना कर सकते हैं। तो नमस्कार महामंत्र का प्रथम पद यानी नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम पद है, वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पानी, जल तत्व। जहां जहां पर हमें जल तत्व के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, जिनको खास किडनी के प्रॉब्लम है, उनके लिए खास ये रेमेडी है नमो अरिहंताणम। वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है, जल तत्व को हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस करता है। तो हमें क्या करना है, नमस्कार महामंत्र का जाप हम हमेशा, अगर हम एक पद की भी साधना कर रहे हैं ज्ञान मुद्रा से करेंगे, और अगर हम हीलिंग भी कर रहे हैं ज्ञान मुद्रा के साथ अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे, तो जिन जिन को वाटर एलिमेंट थोड़ा सा डाउन है, जिन जिन को किडनी की तकलीफ है, जिन जिन को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है लाइफ में, तो वो स्टेबिलिटी जीवन में प्राप्त करने हेतु ज्ञान मुद्रा के अंदर आपको आपकी हीलिंग करनी है। कैसे करेंगे, तो नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम 108 बार आपको ज्ञान मुद्रा के अंदर अपने ऊपर लगाना है। मतलब अब आप बोलोगे अपने ऊपर मैं कैसे लगाऊं, मैं मेरे ऊपर मेरी हीलिंग कैसे करूं, तो आपको सिंपली अपनी फोटोग्राफ सोचनी है या फिर आप अपना फोटोग्राफ लेके बैठ जाइए।
दोनों हाथ ऐसे आप सभी करेंगे मेरे साथ, ऐसे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा के अंदर। अभी जैसे सामने आपकी फोटोग्राफ है, आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को और सामने आपकी फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ के ऊपर ज्ञान मुद्रा हो गई। मेरा वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है, मतलब कि जल तत्व से रिलेटेड जिन जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, दूसरा है बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, वो भी वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने से अच्छी हो सकती है, ठीक हो सकती है और संपूर्ण स्वस्थता मिल सकती है। तो साथ साथ में लेडीज रिलेटेड जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, मेनोपॉज के अंदर जो लोग भी है, जब भी आपको लो फील करता है तब आप ये आप मंत्र जाप के माध्यम से इस हीलिंग को अपने ऊपर ले सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा एक साथ ऐसे रखेंगे और सामने अपने आप को विजुअलाइज करेंगे और 5 टाइम्स ज्ञान मुद्रा से सर्कल बनाएंगे। जैसे मेरे हाथ घूम रहे हैं, आप भी घुमाएंगे। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। समझ में आ गया सबको? अब आप हाथ नीचे रख सकते हैं। तो 5 बार आपको पूरा ज्ञान मुद्रा के अंदर हाथ को गोल 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 5 बार घुमाना है। और पहला जैसे ही फर्स्ट सर्कल खत्म होता है आप बोलेंगे नमो अरिहंताणम, सेकेंड सर्कल खत्म होता है नमो अरिहंताणम। तो ऐसे नमो अरिहंताणम का हीलिंग आप करते रहेंगे। बट हाँ, खास लेडीज के लिए जब भी आप प्रॉब्लम में है तो 5 डेज आपको कोई भी मंत्र जाप नहीं करने हैं। 5 डेज के लिए आपको इवन एक शब्द भी नहीं बोलना है। परंतु अगर आपको बाद के जो 21-25 डेज आपके पास बचते हैं उसके टाइम पे तब आप ये हीलिंग अपने आप को दे सकते हैं। नेक्स्ट है नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंत। जिस सिद्ध शिला में हमें जाना है, जिस सिद्ध गति को हमें प्राप्त करना है, वो सिद्धों का कलर यानी कि अरुण यानी कि लाल कलर, सूर्य समान तेजस्वी बनना है। हमें जीवन के हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो नमो सिद्धाणम दर्शाता है फायर एलिमेंट। पंच तत्व की जब हम बात कर रहे हैं तो फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व का कारक है नमो सिद्धाणम। और जिन जिन को पेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है, गैस, एसिडिटी या फिर अगर हायर थोड़े से एंड पे बोले तो अल्सर भी अगर हुआ है, तो नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम करते 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 आप अपने आप को इस हीलिंग के माध्यम से सच में स्वस्थ 100% स्वस्थ पा सकते हैं। तो नमो सिद्धाणम फायर एलिमेंट के लिए, સ્કાય એલિમેન્ટ નમો આયર્યાણમ। આચાર્ય ભગવંતોને હું નમસ્કાર કરું છું, વંદન કરું છું, પ્રણામ કરું છું। तो आवा नमो आयर्याणम की जो दिखाता है स्काई एलिमेंट को। स्काई यानी कि आकाश तत्व, और आकाश तत्व हमारे बॉडी का जो पंच महाभूत की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 85% जो तत्व काम करता है वो है आकाश तत्व। और वो आकाश तत्व, वो स्काई एलिमेंट को हम एनर्जाइज कर सकते हैं, हम पावर दे सकते हैं नमो आयर्याणम से। तो नमो आयर्याणम जिन जिन को भी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, नर्व सिस्टम्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है, भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं या फिर भूतकाल को छोड़ नहीं सकते हैं, खास जिनको भी मानसिक जो भी तकलीफ है, शांति नहीं मिलती है, बहुत सारे मंत्र जाप किए फिर भी मन एक जगह पे स्थिर नहीं हो पा रहा है, जीवन स्थिर हो गया, परिवारजन सभी स्थिर हो गए, परंतु खुद का मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, मतलब कि आकाश तत्व की कमी है, आकाश तत्व इम्बैलेंस है। तो इस आकाश तत्व को, स्काई एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम का जाप आपको आपके लिए करना है, और खास तब करना है जब आपको नींद नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह ये हीलिंग भी मेरे से लेते हैं कि आप हमें डिप्रेशन की, आप हमें नींद की हीलिंग दीजिए कि जिसके माध्यम से हम शांति से सो सके। मेरे पास सब कुछ है पर मुझे रात को नींद नहीं आती है।
तो अगर रात को नींद नहीं आती है, आपको लगता है कि पूरा दिन सोने के बाद, एक दूसरा ये भी प्रॉब्लम आता है आजकल, ये भी कॉमन है कि नींद तो आ जाती है। अभी इंसोम्निया का प्रॉब्लम चलो बोलते हैं कि खत्म हो गया, परंतु एक नया प्रॉब्लम ये आया है कि सो के उठने के बाद कोई भी तरीके की लाइफ नहीं है, कोई भी तरीके की जान नहीं है हमारे अंदर। थके हुए हैं, बैठे हुए हैं, उठ गए, जो भी रेगुलर डेली रूटीन है, रूटीन फॉलो कर लिया, पर जो जुस्सा होना चाहिए, जो जोम होना चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी जब आपके अंदर नहीं है, आप लो फील करते हो पूरा आराम करने के बाद भी। 4 दिन हॉलीडे पे गए, 4 दिन रेस्ट किया होटल में जाके, XYZ कोई भी लोकेशन पे जाके, फिर भी 5वें दिन घर आके नई ऊर्जा की जगह आपको लगता है थक लगता है, आपको लगता है अब मैं सोता रहूं, मैं बैठा रहूं, मुझे कुछ काम नहीं करना है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो ये भी आकाश तत्व का बैलेंसिंग मांगता है, और ये आकाश तत्व का बैलेंसिंग आप अपने लाइफ में नमो आयर्याणम के जाप से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए नमो उज्जायणम, उपाध्याय भगवंतों ने, उपाध्याय भगवंतों को नमन करने के लिए, उनको वंदन करने के लिए नमो शब्द के होते हैं 1008 मतलब। खाली नमो के ऊपर अगर एक हम लेक्चर रखें तो वो भी हमारा लेक्चर 4 घंटा चले, क्योंकि नमो शब्द इतना पावरफुल है कि मैं नमस्कार करता हूं तो मुझे नमस्कार कैसे करना है, नमस्कार भाव मेरे अंदर लाना है, तो वो नमस्कार भाव कैसे लेके आना है, वो खाली नमो शब्द के अंदर लिखा हुआ है। तो नमो उज्जायणम यानी कि अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व को जो बैलेंस करता है, वैसा नमो उज्जायणम। बिजनेस की जिनको भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में टिक नहीं पा रहे हैं, जॉब तो ले लिया पर जॉब आपको, आप नहीं टिक पा रहे हो, या फिर लेने के टाइम, जॉब में एंटर होने के टाइम बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म, पर फिर कलीग का प्रॉब्लम, ग्रोथ का प्रॉब्लम, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, जॉब मिलने के बाद भी हाथ से छूट जा रही है, बहुत सारा पॉलिटिक्स आपके ही साथ हो रहा है, तो तब आपको आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस करना है, और अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए नमो उज्जायणम। बहुत सारा काम करने के बाद जिनको एक प्रॉब्लम रहती है ईगो की, बहुत कुछ है और साथ में जीरो बना देते हैं अपने आप को, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो बंदा हीरो है, पर अपने ईगो की वजह से, अपने अहंकार की वजह से जीरो बन जाता है। समाज में, सोसाइटी में मुंह पे सब अच्छा बोलते हैं, पर पीछे से बोलते हैं कि ही इज वेरी एरोगेंट, वेरी रूड। तो ये अगर ईगोइस्टिक का फीलिंग है, या आप खुद जेलसी का फीलिंग भी कभी फील करते हो, तो आपको आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस करना है, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना है, और अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए नमो उज्जायणम 108 बार। अब जब भी इसमें से कोई भी आपका बैलेंसिंग करना चाहो, अर्थ एलिमेंट या फायर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, जो भी पद की आप साधना कर रहे हो, फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि ज्ञान मुद्रा के अंदर 108 बार आपको आपके फोटोग्राफ के ऊपर, या अपने आप को विजुअलाइज, अभी तो सभी लोग को विजुअलाइजेशन का पावर पता है, अब सबको आता है कैसे विजुअलाइज करना है, तो सीधा अपने आप को विजुअलाइज करिए और इस एनर्जी को फील करिए। और नमो लोए સર્વ સાહુણમ, આ જગતમાં 3 લોકમાં સર્વ સાધુ ભગવંતો, સર્વ સાધ્વીજી ભગવંતોને વિરતિધારી વેશને હું વંદન કરું છું, પ્રણામ કરું છું, એવા સર્વ સાધુ ભગવંતોનું નમો લોએ સર્વ સાહુણમ। અને આ સાધુ ભગવંતોની ઓરા ક્યાં સુધી વ્યાપ્ત છે, जैसे अभी गुरु जी ने बोला कि पांडवों का साधना करते 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 नमस्कार महामंत्र की चेन के अंदर जुड़ते 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 100 मीटर की ओरा बन के बढ़ के बन गई 200 मीटर, 500 मीटर, और धीरे 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 वो ओरा का व्याप्त इतना हो गया कि पांडव वहां पर एक नवकार मंत्र गिने, युधिष्ठिर जी एक नवकार मंत्र गिने, और वहां पर दुर्योधन नागपाश में से मुक्त हो जाए। मतलब क्या एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हुई और क्या उसकी स्ट्रॉन्ग ओरा हुई। तो वो स्ट्रॉन्ग ओरा फील करने के लिए, अपने आप खुद की ओरा को पावरफुल बनाने के लिए नमो लोए सव्व साहुणम, एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व का कारक,
और वायु तत्व हम जो ब्रीद करते हैं, हम जो श्वास लेते हैं, वो भी क्या है? एयर एलिमेंट ही है। साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बोले तो O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। परंतु खाली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हमारे अंदर जैन धर्म के अंदर इतनी सूक्ष्म बातें दी हुई है। भगवान महावीर स्वामी जब देशना देते हैं तो इतनी सूक्ष्म बातों को समझाते हैं। हर इंसान को, हर पंखी को, हर पशु को अपनी बोली में, अपनी भाषा में वो वाणी, वो देशना, वो पवित्र शब्द सुनाई देता है। वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझते हैं, सुनते हैं। और वो अणु, वो परमाणु जहां पर प्रभु ने श्वास लिया है, जहां पर प्रभु ने विचरण किया है, ऐसी कई तीर्थ भूमियां हैं, ऐसे कई कल्याणक भूमियां हैं। तो हर जगह का जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल ही जब हम श्वास लेते हैं हमारे अंदर जाता है और उसी वायुमंडल में से हम उच्छ्वास भी लेते हैं। तो श्वासोश्वास की एक क्रिया एयर एलिमेंट से बैलेंस होती है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, खास ये आप नोट कर सकते हैं कि जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, खास अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करें। और एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपके पास है नमो लोए सव्व साहुणम। तो एक बार फिर से फटाफट से रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। नमो अरिहंताणम वाटर एलिमेंट, नमो सिद्धाणम फायर एलिमेंट, नमो आयर्याणम स्काई एलिमेंट, नमो वज्रायणम अर्थ एलिमेंट एंड नमो लोए सव्व साहुणम एयर एलिमेंट, यानी कि वायु तत्व। सभी तत्वों को बैलेंस करते हुए अगर आप अपने ग्रहों को एनर्जी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं पर चंद्र वीक है या कहीं पर शुक्र वीक है, तो शुक्र और चंद्र दोनों को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए नमो अरिहंताणम। प्रथम पद जो ग्रह के हिसाब से शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को एनर्जी देता है, तो नमो सिद्धाणम सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह को, जहां से लखलोट मात्रा में एनर्जी मिलती है। नमो सिद्धाणम सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह। तो नमो आयर्याणम गुरु ग्रह को एनर्जी देता है। जिन जिनको गुरु को बलवान बनाना है, जो भी अध्ययन क्षेत्र में है, जो भी टीचर्स है, जो भी क्रिएटिव लीडर्स है, जो भी बिजनेस के अंदर और ज्यादा क्रिएटिविटी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको खास गुरु ग्रह की उपासना तो करनी ही करनी है। और गुरु ग्रह की उपासना नमो आयर्याणम पद के माध्यम से हम कर सकते हैं। येलो कलर, जैसे अभी कलर भी बताया गुरुजी ने कि श्वेत कलर नमो अरिहंताणम, तो रेड कलर अरुण कलर नमो सिद्धाणम, पीलो कलर येलो कलर नमो आयर्याणम, तो ग्रीन कलर नमो वज्रायणम, और नीला कलर श्याम रंग नमो लोए सव्व साहुणम। तो गुरु ग्रह को एनर्जी देने के लिए, पॉजिटिव पावर्स, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए नमो आयर्याणम। बुध ग्रह को एनर्जी देने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि बुध ग्रह अगर बिगड़ा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, तो वहां के उसके रिलेटेड बुध ग्रह से प्रभावित रोग भी आपको हो सकते हैं। तो बुध ग्रह को शुद्ध बनाने के लिए नमो वज्रायणम। बुध ग्रह की आराधना साधना खास कन्या राशि के लिए बुध ग्रह स्वामी है, और कन्या राशि के जातकों को खास बुध ग्रह की, विमलनाथ भगवान की और नमो वज्रायणम की माला करनी चाहिए, जाप करनी चाहिए। और शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों को एनर्जी देने के लिए, कहीं पर आपको लगता है कि शनि की पनौती चल रही है, आप कभी भी देखते हैं कुंडली में दिखाते हैं तो आपको दिखता है कि 7.5 चल रही है या कुछ ऐसी पनौती चल रही है, या कहीं पर कुछ राहु या केतु ग्रह की वजह से कोई योग बन रहा है, पितृदोष बन रहा है, गुरु चांडाल योग बन रहा है, कोई प्रकार का कोई ऐसा योग बन रहा है, शापित योग बन रहा है, तो हर प्रकार के योगों का निवारण, यानी कि नमो लोए सव्व साहुणम। कुंडली के हर प्रकार के दोषों का निवारण, हर प्रकार के ग्रहों की शांति, और जो न्याय के देवता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के देवता है, ऐसे शनि महाराज, और शनि महाराज का साधना उपासना यानी नमो लोए सव्व साहुणम। तो ग्रहों के साथ इसको जोड़ते हुए हमने बहुत सारी बातें कर ली कि मानवीय भावनाओं की शुद्धि। नमस्कार महामंत्र क्या है? तो नमस्कार महामंत्र है बीज स्वरूप मंत्र।
हमारे जीवन का बीज है, हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन का आधार है। जैसे जैसे हम भक्तामर महास्तोत्र की भक्ति करते जाते हैं, जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं कि मुझे ये हो रहा है, मैं क्या गाथा करूं, मुझे ये है तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो जैसे हम भक्तामर महास्तोत्र की असीम भक्ति करते हैं, भक्तामर महास्तोत्र का एक एक गाथा के साथ जो गर्भित मीनिंग छुपा हुआ है, वैसे ही ऋषि मंडल मिच्छामि दुक्कड़म, वैसे ही नमस्कार महामंत्र स्तोत्र के साथ अलग अलग बीज मंत्रों के साथ जो ये शाश्वता मंत्र हमें मिला है, जो हमारे हर प्रकार के उन्नति को, प्रगति को, हमारी हर बीमारी का इलाज, फिर मानसिक बीमारी हो कि शारीरिक बीमारी हो, उसका इलाज नमस्कार महामंत्र में है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में हमें सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए, जैसे भक्तामर की फर्स्ट गाथा हर प्रकार के विघ्नों को निवारण करती है, हर प्रकार की उन्नति हमें देती है। जीवन में कुछ भी आए ना आए, भक्तामर महास्तोत्र की फर्स्ट नंबर की गाथा, फर्स्ट नंबर का श्लोका, भक्तामर प्रणत मौली, ये तो आना ही चाहिए। जैसे नमस्कार महामंत्र हमारा श्वास है, वैसे प्राण वायु भक्तामर महास्तोत्र है। तो वो प्राण वायु, वो ऑक्सीजन, भक्तामर स्तोत्र की पहली गाथा तो खास सबको करनी चाहिए। और हर प्रकार की भावनाओं की शुद्धि के साथ साथ जो आत्मिक शक्ति, अबे 3 प्रकार की शक्ति हमने समझी, सीखी। तो जो आत्मिक शक्ति है कि आत्मिक शक्ति प्रकट होने से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मैंने 1.25 लाख मंत्र गिन लिए, मैंने 5 करोड़ गिन लिए, मैंने 5 करोड़ भक्तामर गिन लिए, पर मेरी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई? ये भी तो एक क्वेश्चन है। जो गिना है वो तो नंबर्स है। जैसे हम पैसे की बाबत में बोलते हैं, बैंक में जो पड़ा है वो तो नंबर्स है। जो पैसा मैंने सद्कार्य में यूज किया, जिससे मैंने कुछ भक्ति करी, जिस पैसों से मैंने एक प्रतिमा भरवाई, जिस पैसों से मैंने लोगों को, बोलते हैं ना कि मदद किया, वो पैसा सच में कमाया हुआ पैसा है। वैसे ही मंत्र जाप करना ही चाहिए, करना जरूरी है हम सब के लिए हमारे जीवन में। परंतु मंत्र जाप को संख्या के ऊपर निर्धारित ना करते हुए, उस मंत्र जाप को हमें ऐसे दिल से करना है कि हमारे रोम रोम में, हमारे तन में, हमारे मन में परमात्मा आदिनाथ का वास हो, परमात्मा पार्श्वनाथ की मंत्राक्षरों की ऊर्जा। पार्श्वनाथ भगवान को क्या बोला जाता है कि पार्श्वनाथ परमात्मा मंत्राक्षरों के स्वामी है। यानी जो भी मंत्र साधना करनी है, प्रभु पार्श्वनाथ के नाम से करने से उस मंत्र साधना की संपूर्ण प्राप्ति, उस मंत्र साधना का संपूर्ण लाभ हमें मिलता है। तो ऐसे मंत्राक्षरों के स्वामी राजाधिराज परमात्मा पार्श्वनाथ परमात्मा, हमारे युगादि देव, प्रथम तीर्थंकर, और जिनके शासन से, जिनकी धुरा के अंदर हम हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान और शासन के स्थापक ऐसे हमारे महावीर स्वामी प्रभु की भक्ति। तो ये प्रभु की भक्ति करते करते हमें मंत्र जाप खाली नंबर्स में नहीं करना है। मैंने गिन तो लिया, बट मेरी आध्यात्मिक उन्नति कितनी? तो वो आध्यात्मिक उन्नति का ग्राफ, आत्मिक उन्नति का ग्राफ, खुद के सोल का एनलाइटनमेंट। क्योंकि ये सब कार्य हम जो कर रहे हैं, हम इतने टाइम से, पिछले 8-9 महीनों से हम भक्तामर की सतत भक्ति कर रहे हैं, और आप सभी भाविक भक्त हमारे साथ भक्तामर के माध्यम से, वो सद्गौरम के माध्यम से, नमस्कार महामंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सबकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया है। सबने बहुत 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 अच्छे से सरस्वती देवी की भी साधना की है, महालक्ष्मी माता की भी साधना की है। तो ये सब साधनाओं का अंतिम गोल क्या है? फुल स्टॉप क्या है? तो वो फुल स्टॉप है कि उस परम तत्व की प्राप्ति, तीसरे भाव में जो मोक्ष मुझे चाहिए, उस मोक्ष मार्ग पर मैंने मेरा पहला कदम रख दिया है। तो उस मोक्ष मार्ग की सीढ़ी में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को और उन्नत बनाने के लिए हमारी भावनाओं की शुद्धि होनी जरूरी है। हमारा मन सच में निर्मल होना, सच में सरल होना जरूरी है। खाली सरलता बोलने से नहीं आती है, निर्मलता बोलने से, लेक्चर सुनने से नहीं आती है। इट कम्स बाय प्रैक्टिस।
धीरे 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 अपने जीवन में छोटे छोटे चेंजेस करो। चेंजेस एक दिन में ड्रास्टिक चेंज नहीं आएंगे। जैसे हीलिंग के लिए भी मैं बोलती हूँ कि एक दिन का हीलिंग किया तो आपको फायदा नहीं होगा, परंतु आप लंबा हीलिंग करो, लॉन्गर टर्म में हीलिंग करो, तब आपको फायदा होगा। और उसका रीजन यही है कि आपको जो एनर्जी मिलती है वो कांस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही मन के अंदर सच्ची भावना, सच्ची पवित्रता और सच में निर्मलता, सच में सरलता कब आएगी? जब हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति को सोचते 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 कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, फिर हम वो सगहरम गिने, फिर हम भक्तामर स्तोत्र गिने, या फिर हम नमस्कार महामंत्र गिने, हमें 24 के 24 तीर्थंकर परमात्माओं का असीम आशीर्वाद मिल रहा है। इस जैन शासन का जो बोलते हैं ना कि एक जैन शासन की धुरा हमारे ऊपर है, उस धुरा का वहन हम कर पा रहे हैं। तो बहुत सारा हीलिंग के बारे में हमने बात की और फटाफट से चक्रास के बारे में समझ के फिर से एक बार हम नमस्कार महामंत्र को आनंदा भैरवी राग में सुनेंगे। और इस टाइम थर्ड टाइम हमारा जो ये नमस्कार महामंत्र होगा, जिसके अंदर आपको ध्यान के अंदर, ध्यान की साधना के अंदर भी डूबना है। तो बहुत सारी बात तो हमने कर ली। केंद्र यानी कि चक्र। अब चक्रास के बारे में सबको पता है, ऑलमोस्ट 95% लोगों को चक्रास के नाम भी याद है, चक्रास के कलर भी याद है और चक्रास के लोकेशंस भी याद है। सो आप सबने सच में बहुत मेहनत की है, आप सबने बहुत साधनाएं की है, इसलिए आप इस मकाम तक पहुंच पाए हो। और नमस्कार महामंत्र के साथ जब हम हमारे चक्रों को शुद्ध करना चाहते हैं, हमने एलिमेंट्स को शुद्ध किया, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, पंच तत्वों को हमने शुद्ध किया, हमने ग्रहों को एनर्जी दी, और जब हम चाहते हैं कि हमारे सारे चक्रास पॉजिटिव पावर के साथ नमस्कार महामंत्र की आराधना करते जाएं, तो सबसे पहला शुरू करेंगे सहस्त्रार चक्र से। सहस्त्रार चक्र यानी कि टॉप ऑफ आवर हेड। फिर से एक बार यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये जो चक्र है वो चक्र डायरेक्ट कनेक्शन देता है परमात्मा की एनर्जी के साथ। ये चक्र हमें तुरंत जोड़ता है, तुरंत कनेक्ट करता है परमात्मा की एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर आपको देखिए, मैं एक बार सिखा देती हूँ, फिर आप सब कर सकते हैं। आपको हाथ की ऐसे, इसको पिरामिड मुद्रा बोलो या ऐसे मुट्ठी बोलो, जो भी बोलो, इसको ऐसे रखते हुए आगे और पीछे ऐसे आपको पिरामिड बनाना है। आप सब देख सकते हैं मैंने कैसे रखा है। यहाँ पर ऐसे करके दिखाऊं तो एक हाथ ऐसे रखा, दूसरा हाथ ऐसे रखा, मतलब ये क्या हुआ, आगे पीछे भी हुआ और पिरामिड भी हुआ। ऐसे नहीं रखना है या फिर ऐसे नहीं रखना है, समझ में आ रहा है? फिर से दिखा रही हूँ। एक हाथ आपने पिरामिड मुद्रा में रखा, अब दूसरा हाथ थोड़ा सा उसके पीछे आगे पीछे हुआ, ये आपका पूरा पिरामिड बन गया। अब इस पिरामिड की कैप को सहस्त्रार के ऊपर रखेंगे और अब आप 9 बार नमस्कार महामंत्र का जाप करेंगे। तो ये आपका ज्ञान केंद्र आप सभी एक बार करेंगे, उसके बाद मैं आगे के चक्रास के बारे में बताऊं। पहला हाथ ऐसे, मतलब लेफ्ट राइट कोई भी हो, बट पहला हाथ आप ऐसे रखो। अभी दूसरा हाथ को ऐसे रखो, गुड, सभी सही जा रहे हैं। अब धीरे से इस पिरामिड की टोपी को, इस मुद्रा को अपने ऊपर रखो। वेरी गुड, सबने परफेक्टली रखा है। मीना जी, मीना शाह, अब हाँ आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, बराबर, ठीक है। अनुपमा जी, हाँ बराबर कर रहे हैं, अंकल भी बराबर कर रहे हैं। विनय भाई ऐसे आगे पीछे रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे और हल्का सा ऊपर। अल्पाबेन बराबर है, इलाबेन पारेख जामनगर बराबर है। तो पिरामिड मुद्रा में रखते हुए अब हाथ नीचे रख सकते हैं आप सब। तो ज्ञान केंद्र को जब आपको एनर्जी देनी है, सहस्त्रार चक्र को एनर्जी देनी है, तब आपको नमो अरिहंताणम या फिर ज्ञान केंद्र को पूरा नमस्कार महामंत्र के साथ एनर्जी दे सकते हैं। आज्ञा चक्र, सेंटर, थर्ड आई, आज्ञा चक्र का तो सबको पता
हम ऐसे ही हर एक उसमें करते हैं। तो आज्ञा चक्र को क्लीन करने के लिए, पॉजिटिव पावर देने के लिए, जिसको बोला गया है दर्शन केंद्र, तो दर्शन केंद्र को और ज्यादा पॉजिटिविटी देने के लिए नमो सिद्धाणम और नमो सिद्धाणम का जाप करते करते हम हमारे आज्ञा चक्र को पावरफुल बनाएंगे। कंठ चक्र यानी विशुद्धि चक्र, कंठ में मिठास और माधुर्य के लिए नमो आयरियाणम का जाप करते 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 कंठ चक्र को पॉजिटिविटी देंगे। और आनंद का केंद्र यानी कि हमारा हृदय, अभी हमने जो सरलता निर्मलता की बात की, हम सच में हमारा आत्मिक उत्थान चाहते हैं, हम सच में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं जीवन में और इस जन्म में, तो वो आएगा हमारे हृदय में से। और हृदय चक्र, फिर से ये जो पिरामिड मुद्रा मैंने आपको सिखाई, उसी पिरामिड मुद्रा में आपके हाथ हृदय चक्र के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं। और इसको आनंद केंद्र बोला जाता है कि आनंद केंद्र के अंदर जितना आनंद, जितना पॉजिटिविटी है, जितना आपको जो भी हार्ट रिलेटेड तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो भी ब्लॉकेजेस से, बाईपास का भी जिन जिनको भी प्रॉब्लम है, वो सब हृदय चक्र को पॉजिटिव पावर देने से क्लीन होता है। और बाकी के जितने भी चक्र है, कौन कौन से चक्र है अभी? मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र और बैक साइड के जो भी चक्रास है, तो ऑल द चक्रास दे ऑल आर नोन एज शक्ति केंद्र। और ये शक्ति केंद्र भी पॉजिटिव पावर लेते हैं नमस्कार महामंत्र से, और पद है नमो लोए सर्व साहुणम। तो बहुत सारी ज्ञान चर्चा को करते 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 अब फटाफट से 8 मिनट का ध्यान, और फिर गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो आगे का क्लास गुरुजी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से आई रिक्वेस्ट कि अब आप सब ये जो हमारा पिरामिड मुद्रा है, उस पिरामिड मुद्रा में ही पलाठी पे रख दीजिए ऑन द नीज। नहीं, ऊपर हाथ 8 मिनट नहीं रखना है, ध्यान ही कर रहे हैं, सीधा हमें हाथ को ऐसे रखना है, पिरामिड मुद्रा को नीचे रखते हुए 2 मिनट के लिए आनंद भैरवी राग का आनंद लेंगे, और फिर हम फटाफट से गुरुजी को सुनेंगे। सभी की आंखें बंद।
में भी आप सभी आंखें खोल सकते हैं और बहुत सारी नवकार मंत्र की भावना को करते 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 आज हमने बहुत सारा थेरापी भी सीखा, बहुत कुछ जाना, गुरुजी से बहुत सारी असीम एनर्जी हमने प्राप्त की और फिर से एक बार श्री थाना गोघारी महिला मंडल समाज को शत शत अनुमोदन, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, थैंक यू फॉर गिविंग अस चांस एंड स्पेशली थैंक्स टू शैला बेन एंड ज्योति बेन, सो थैंक यू सो मच। एंड फिर से सुनते हैं गुरुजी को। गुरुजी ખૂબ ખૂબ અનુમોદના પૂજાબેન, જબરદસ્ત આપ લોકોને નવકાર की ભાવધારા में બધાને જોડી દીધા છે અને દરેક જીવ નવકારમય બની ગયા છે। આવો શૈલાબેન, ખૂબ ખૂબ તમારા મંડળના એક જે મહાન ભગીરથો છે, ઘણા બધા લોકોએ 1.25 લાખ મંત્રની આરાધના કરી રહ્યા છે, ઘણા બધા લોકો 9 લાખ નવકાર મંત્રની આરાધના ગણી રહ્યા છે। બધા એકવાર બંને હાથ જોડી અત્યારે હજારોની સંખ્યાની અંદર આપણી સાથે નવકાર મંત્રની સાધના માટે આવી કડકડતી ઠંડીમાં પણ પોષ દસમીના પવિત્રતમ સાધનામય દિવસમાં સાધના કરી રહ્યા છે એવા તમામ સાધકોને હું કોટી કોટી प्रणाम करी रहे છું। ઘણા બધા લોકો, बहुत सारे लोगों ने अठम किया है। मुझे आज इतने सारे फोन आए, गुरुजी मैंने मेरी जिंदगी में कभी एकाशना नहीं किया था और सीधा 24 अठम, बहुत लंबे समय से मैं खाली एकाशना करती थी और मेरा अठम, तो इसे सैकड़ों हमारे भक्तामर हीलरों ने अठम किया है। उन सभी को भी हम साता पूछते हैं। कल सभी लोग पारणा करें तब जरूर जरूर हमें याद करें, हमें आशीर्वाद दे कि हम भी अठम की तपस्या कर सके। आइए हमारे शैलाबेन अपनी भावधाराओं को सुनाएंगे, साथ साथ में उनके भी साथ में जुड़े हुए कई सारे नमस्कार महामंत्र के साधक हैं। अंतिम में हम सभी लोग 1.25 लाख नवकार मंत्र का संकल्प लेंगे। थाना मंडल को वोट तो बहुत सारे लोगों ने सब कुछ दिया होगा, लेकिन कम से कम 11, कम से कम 21, कम से कम 31 लोग आज 1.25 लाख नवकार मंत्र का संकल्प लेकर के आज की साधना को भव्य बनाए, मंगल बनाए, यही भावना के साथ आओ शैलाबेन। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ બહુ ધન્યવાદ તમને તથા પૂજાબેન ને। મારે તમને એક કહેવાનું છે, હું તમારી સાથે લોકડાઉન થી જોડાયેલી છું, પણ આ રોજ જોતી હતી, પણ મારા ભાણેજ વર્ષાબેન રહે ને ખારઘર, એમને મને કીધું મામી આ તમે ભક્તાંબર નું હીલર કરો, એની સાથે કરો રોજ રાત્રે। પેલા એને મને બતાવ્યું, ત્યારથી મને એમ થયું એકવાર મારે નિકુંજભાઈ નું રાખવું છે કાંઈ પણ ભક્તાંબર કે નવકાર મહામંત્ર। પછી આ તો મંડળમાં વાત કરી, બધા કીધું સારું રાખો। ખૂબ ખૂબ અનુમોદના તમારી, તમારું બોલવાનું સાંભળ્યા જ કરી એવું જ લાગે, પૂજાબેન ને તમારું બંનેનું, ને હું તમારે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું। મારે ઉદાર દિલ દાતાઓનું નામ જરા 2 મિનિટ લઉં છું। જ્યોતિબેન હર્ષદ મુલુંડ, મીનાબેન ઓગેશ કપાસી થાણા, કેતકીબેન જયંતભાઈ રામબિયા થાણા, કાર્તિબેન બિપિનભાઈ શાહ થાણા, હિનાબેન મન્નરભાઈ શાહ, મીનાબેન જયસુખભાઈ શેઠ મુલુંડ, સ્મિતાબેન રાજેશભાઈ દોશી થાણા, રેખાબેન રત્નીભાઈ થાણા, નૈનાબેન મહેન્દ્રભાઈ થાણા, વીરાબેન પ્રદીપભાઈ થાણા, હર્ષાબેન અશ્વિનભાઈ મહેતા ઘાટકોપર, મેઘનાબેન સરાફ થાણા, ચંદ્રિકાબેન સતીશભાઈ થાણા, પાવાનીમાન રમેશભાઈ કારિયા થાણા, વર્ષાબેન રશ્મિકાંત થાણા, પ્રજ્ઞાબેન નરેન્દ્રભાઈ શાહ, શિલ્પાબેન ચંદ્રકાંતભાઈ શાહ થાણા, શૈલાબેન ભરતભાઈ દોશી થાણા, નીતાબેન પ્રકાશભાઈ થાણા। આ ખૂબ ખૂબ મારા દાતાઓની હું ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું। મને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે મારે કોઈને કહેવું નથી પડતું, બધા એની મેળે જ બધું લખાવી દે છે। બસ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના ને તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। શૈલાબેન, કેટલા નવકારનું દાન કરવાનું છે આજે તમારે? 1.25 લાખ દાન નહીં, 1.25 લાખ નવકાર મંત્રનો ગણીશ ભીષ્મ સંકલ્પ લઈ રહ્યા છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બીજા કોણ કોણ છે તમારા મંત્રી પ્રમુખ સાથે? બધા સાથે પરિચય કરાવો મને। દેવલાલી ગયા છે ત્યાં એ લોકોને નેટ નથી આવતું, બધા અટમ કરવા દેવલાલી ગયા છે, પ્રમુખ મંત્રી સેક્રેટરી બધા ત્યાં ગયા છે, એ લોકોને નેટ નથી આવતું। હાજરમાં કોણ છે આપણી સાથે? જ્યોતિબેન છે, કલાબેન છે, કલાબેન ને કેવો લાગ્યો કાર્યક્રમ? દમુબેન છે, કલાબેન છે, પૂજાબેન, મીનાબેન ને શું કેવું છે? મીનાબેન ને? મીનાબેન નથી, બોલો કોણ છે? जय जिनेन्द्र, मीनाबेन। हाँ, जय जिनेन्द्र गुरुजी, जय जिनेन्द्र पूजाबेन। मुझे पूछना था कि जैसे जब नौकार मंत्र का पहले जब हीलिंग का बताया था
तो उसमें नमो अरिहंताणम यहाँ आज्ञा चक्र पे बताया था और नमो सिद्धाणम सहस्त्रार चक्र पे बताया था। आप उस तरीके से भी कर और सकते हो। अभी आपने बताया है नमो अरिहंताणम सहस्त्रार चक्र पे। वो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। नमस्कार महामंत्र के हर एक पद के अंदर लखलूट पॉजिटिव पावर है ना? तो आप कोई भी चक्र के ऊपर कोई भी यूज कर सकते हो। और आपको इसके लिए ज्यादा मुझसे पूछना है तो मेरा या गुरुजी का कभी भी आप बाद में कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? ओके, ओके, प्रणाम, जय श्री आप मार्च महीना में ક્યારે આવવાના તાણા? શીલાબેન, મેં છે ને ચલો સભી બધાને લોગ, અનમ્યુટ કર્યા છે, તો હા. બધા પોતાની રીતે અનમ્યુટ થઈ શકશે. તો તમારા જે પણ છે ને એ લોકોને કયો જાતે અનમ્યુટ થાય. તો એ લોકોને નહીં આવડે કોઈને કદાચ તો કોને ખબર મને અચ્છા, કળાબેન ઈવન નહીં કદાચ નહીં હોય. बम्बई वाले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बम्बई वाले, वो सभी लोग बराबर लिख लेंगे कि 13 तारीख को हमारी चेंबूर जैन देरासर चेंबूर के अंदर बहुत भव्य रूप से 13 तारीख को सुबह में हमारी भक्तामर की शिविर नक्की हो चुकी है। 1-2 चेन्नई में जबरदस्त तैयारी हो चुकी है, 4-5 बेंगलोर में तैयारी हो चुकी है। पूना वालों ने तो जबरदस्त माहौल, पूरा प्रेस मीडिया हॉल, गौतम प्रसादी, पूरी तरह से वो पूना वाले सभी लोग मिलकर के 2 दिन भक्तामर महामहोत्सव कर रहे हैं 11 तारीख 12 तारीख को। तो पूना वाले भी जितने भी है वो सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए, बम्बई वाले भी तैयार हो जाइए। नवसारी के अंदर भी तैयारियां हमारे अनुपमा जी ने स्टार्ट कर दी है। तो बहुत शानदार रूप से 15 तारीख को नवसारी में अति भव्य रूप से आराधना संपन्न होगी। चलो अंतिम पचखांड देता हूँ। एक हमारे साथ शैलाबेन दोषी 1.25 लाख नवकार मंत्रना जेने जेने पण पचखांड लेवाना छे, रोजनी 1 माळा 2 माळा 3 माळा नमस्कार मंत्रमय આપણે બધા બનીએ એવા ભાવથી આજે થાણાના સમગ્ર પરિવારે આયોજન કરેલું છે। બધા બંને હાથ જોડો। મેક્સિમમ જીવનમાં વધુ ને વધુ હું નવકાર મંત્રની જ્ઞાન ધ્યાન જપ ध्यान સાધના કરીશ એ ભાવ સાથે બધા બંને હાથ જોડો। જેને પણ 1.25 લાખ નવકારના પચખાંડ લેવાના હોય એ દરેક વ્યક્તિ હાથ જોડજો। 2 3 આ વિવો પછી ખૂબ અલ્પાબેન ખૂબ સરસ, વલ્લભભાઈ પચખાંડ લઈ રહ્યા છે ખૂબ સરસ, બીજા પણ ઘણા બધા લોકો પચખાંડ લઈ રહ્યા છે। જે પણ છે નમો ઓરિયંતામ નમો સિદ્ધામ નમો આર્યમ નમો જમ, નિરલ શાહ ખૂબ સરસ, નૈનાબેન પાઠશાળાના આપણા ટીચર ખૂબ સરસ, વર્ષાબેન, પલ્લવીબેન, જ્યોતિ શાહ ખૂબ સરસ। જેટલા પણ લોકો આજે સામૂહિકતાનું બળ ભગવાનનું દીક્ષા કલ્યાણક છે અને દીક્ષા કલ્યાણકની અંદર આપણે બધા 1.25 લાખ નવકાર મંત્રના પચખાંડ લઈ રહ્યા છીએ। નમો ઓરિયંતામ નમો સિદ્ધામ નમો આર્યમ નમો જમ નમો લીધો સાણમે સૌને નમોકારો સવાપણાશો મંગલાણંત સવે જમણો મંગલમ ધારણા અભિગ્રવચકાય અથવા ભોગણમ સસાગરણમ મહત્રાગણમ સર્વ સમય વ્યત્યાગરણમ વો શિરે વો શિરામી। સર્વનું મંગલ થાવ, સર્વનું કલ્યાણ થાવ અને આ નવકાર મહામંત્રની આરાધના કરતા કરતા પંચ પરમેશ્વરી પરમાત્માની ખૂબ અચિંત્ય કૃપાને પ્રાપ્ત કરો। અને થાણાની અંદર અત્યારે આપણે બધા આવી રીતે ઝૂમમાં મળેલા છીએ પણ લગભગ 10-15 દિવસમાં બધી જગ્યાએ વાતાવરણ નોર્મલ થઈ ગયું છે। ફિઝિકલ રીતે ખૂબ ભવ્યથી ભવ્ય થાણામાં આવો સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ અને તમારો જન્મદિવસ, બર્થડે, મેરેજ એનિવર્સરી કંઈ પણ આવી રહ્યું છે। અનેક સંસારના કાર્ય તો ઘણા બધા કર્યા પણ પાર્શ્વનાથ પરમાત્માના, ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ, જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથ, નમસ્કાર મહામંત્ર ભક્તામર દ્વારા તમારા 25, 50, 100, 200 લોકોના હૃદયમાં ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા જો ખરેખર કરાવીએ તો આપણા બધાનું જીવન સફળ છે। એ ભાવ સાથે ફરીથી એક વખત તમામ એ લાભાર્થી પરિવારોને, તમામ આયોજક પરિવારોને અને શૈલાબેન અમારા ખાસ જે ખૂબ ઉત્સાહી છે, જેમને સેંકડો સમયથી ભાવના હતી એ ભાવના આજે દીક્ષા કલ્યાણકમાં પરિપૂર્ણ થઈ છે, એમને પણ આજે આચાર્ય મહાસાહેબે ખૂબ 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 આશીર્વાદ આપ્યા છે। તો શૈલાબેન આદિ સર્વ કમિટીમાં વ્યક્તિઓનું મંગલ થાય, કલ્યાણ થાય। નવા વિષય સાથે પાછા નોકરવાળી તમે કહેતા હતા ને ગાંઠવાળી ઈ ક્યાં આગળ મળે છે? નોકરવાળી નવકાર એ બદલ જો નવકાર મંત્રની નોકરવાળી ગાંઠવાળી કહેતા હતા ને ક્યાં મળે છે? વર્ષાબેન બોલો। નૌકરવાળી જે આપણે રોજ પાર્ટ્સ ની જે નૌકરવાળી છે ને, હેલો પ્રણામ ગુરુજી। બોલો વર્ષાબેન કહો। હા, અનમ્યુટ કરું તો થાય। હેલો, સંભળાય છે વર્ષાબેન? હા હા બોલો ગુરુજી, પ્રણામ પૂજાબેન। પ્રણામ।
આ સાતામાં એકદમ એમને પૂછ્યું કે નોકરવાળી જે રોજ પાઠની હતી ને આપણી હમ એ માળા માટે પૂછી રહ્યા છે ગાંઠવાળી. બરાબર. એટલે ગુરુજીને છે ને શાયદ નેટ કનેક્શન વયું ગયું છે, એટલે તમે ગુરુજીને પર્સનલી પૂછી લેજો. બરાબર. બરાબર કારણ બરાબર કે અત્યારે મીટિંગ માંથી લેફ્ટ થઈ ગયા છે અને નેટ કનેક્શન બી એમનું વયું ગયું છે. બરાબર. તો બહુ સરસ થયું. બહુ સરસ આજની હિલિંગ થઈ. બહુ સરસ જી ગુજરાતનું થઈ ગયું. ભાવ સુપર બહુ સરસ થઈ ગઈ. થેન્ક આમ યુ, તો થેન્ક બીજું યુ. તમને મળી મારા મામી છે આ શૈલાબેન. બરાબર. એને તો આજે અહીંયા આપણી આ મીટિંગ અહીંયા ખતમ કરીએ. ફરીથી એક વખત થાણા ઘોઘારી મહિલા મંડળનો, શૈલાબેનનો, નયનાબેનનો, જ્યોતિબેનનો ખૂબ 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 આભાર. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બોલો જન શાસન દેવ કી જય.